जी सर, डन। So, good morning, everybody. Welcome to the day 2 of the online workshop, which is being conducted at Government College for Women Parade Ground on 27th and 28th of December. We had a really enriching sessions on the day 1 by Miss Alka Tiwari as well as Mr. Atul, who gave us a good insight of blogging and communication skills. Today, we have joined here for the day 2 of the online workshop, and today's first session will be taken by Dr. Praveen Sharma. Uh, Mr. Sharma is a very renowned personality. He's an educator working in the domain of communication skills, innovative learning, and he organizes trainings for. He has been organizing training for last 13 years for various class groups of students. Apart from he is involved in various e-learning techniques to the students. Apart from that, he delivers lectures on various issues like social media, internet maturity, and digital citizenship. So he's associated with some of the leading academic and edtech organizations. He's an associate editor of Asian Journal of Distance Education. He blogs regularly on his blog. Link is eklavyaparv.com, and his educational podcasts can be found on Spotify, Google Podcasts, Ghana, and Anchor. He also is multi-talented. He writes poetry as well as various other things. Like his poetry is available as Kone Ka Cabin as his collection, and then he conducts training sessions. I already told you, for various students for classroom makeover, so media and communication skills. So today he will be taking sessions on, first of all, podcasts. So a bit about podcasts. We find various audio files, the audio files which are available on the internet and can be downloaded and streamed as per our convenience. They are referred to as the podcasts. The details and how to design, how to make podcasts will be given by Dr. Sharma, and I'll hand over it to him before doing much delay. So, Mr. Sharma, hand over to you for the session. Thank you very much, Dr. Gaurav, and I welcome everyone. मेरी तरफ से सभी को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सलाम आप सभी को, और इस उम्मीद के साथ that we all are fine, our loved ones are also having a good health, सब खुश हैं, and we are meeting on this 28th, and probably we are going to enter into the next year with some kind of hope that the door which is opening to 2021 will not be getting what came in this year. इसमें तो हम लोग ऐसा लगा जैसे घर में सिमट से के रह गए काफी हद तक। तो जितने भी लोग अभी हैं हमारे साथ, स्टूडेंट्स आर देयर। यस्टरडे इट वाज अ फैबुलस रिस्पांस, यू कुड हियर माय वॉइस यस्टरडे। मैं कल बीच-बीच में थोड़ा आ रहा था आप लोगों से बातें करने के लालच में, स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज़ सर मेंशन्ड दैट आई हैव बीन डूइंग ट्रेनिंग्स, बट फॉर्चुनेटली आई एम एंगेज्ड इन टीचिंग, एंड ट्रेनिंग जो है वो तो लॉकडाउन हो गया, एजुकेशनल लॉकडाउन आई वुड से। एक बड़ी अटपटी सी बात है, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू से टुडे दैट एजुकेशन डजंट सीम टू बी एन एसेंशियल थिंग। मतलब बहुत जरूरी होती तो इट वुड हैव बीन ओपन, but still both sides are there. Probably something which is very integral, which is very important to our life, उसको तभी ओपन किया जाएगा जब सब कुछ सेफ लगे और सब कुछ सबके लिए सही हो। बोथ वेज, दोनों साइड्स होती हैं जैसे कॉइन की, इसकी भी दोनों हो सकती हैं। मैं अगर आप लोगों को वार्म अप में, जैसे आप लोग की मुझे गुड मॉर्निंग्स मिल रही हैं, आई विल बी मैनेजिंग द यूट्यूब एज वेल, लुकिंग एट यू। वी हैव अराउंड 81 वेरी नाइस लर्नर्स हियर। मैं अगर शुरुआत करूं तो कोने का कैबिन के बारे में अगर बात करें कि व्हाई पोएट्री, लाइक बिकॉज आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स प्राइमरीली टुडे, सो द पर्पस टुडे इज नॉट अबाउट बॉम्बार्डिंग समथिंग ऑन यू। मतलब मैं कोई ऐसी बरखा नहीं करने वाला हूं आपके सर पे कि आपको कोई बर्डन हो। लर्निंग हैज ऑलवेज टू बी अ फन, मतलब लर्निंग एक खुशी की चीज ही होनी चाहिए, तो आप लोगों की है भी। यस्टरडे आई कुड सी दैट व्हेन यू वर गिविंग अप्रिसिएशन कमेंट्स लाइव चैट में, तो वो भी मन से थे, और जब बात आती है कि आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि आप कितने अच्छे सवाल पूछ रहे थे। जब आपने पूछा कि व्लॉग और ब्लॉग में से कौन सी चीज अच्छी हो सकती है, तो वो कुछ उस तरह की कुछ चीजों के जवाब आज मैं भी कोशिश करूंगा देने की। हम लोग का एजेंडा आज क्या रहेगा? कल आपने अतुल से बात की, आपने उल्का जी से बात की। I'm fortunate to say that I have been a teacher to Atul,
एंड ही हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ माइन। जब उसने आप लोगों को ये कहा था कि एक असाइनमेंट थोड़ा ज्यादा सीरियस ले लिया, तो वो असाइनमेंट क्या था? आई वॉज डूइंग द मिसचीफ। वो खुराफातें जो हैं वो मैं करता था उन लोगों के साथ, दैट आई फोर्स देम टू डू समथिंग लाइक ब्लॉगिंग, यूट्यूब प्रेजेंटेशंस, पॉडकास्टिंग। तो अतुल ने वो सीरियस ले लिया। तो सीरियस लेने का मतलब क्या था कि जब आप पढ़ते पढ़ते जो जो ये आपके 3-4 years है ना एजुकेशन के, द हायर एजुकेशन, आई एम सेइंग, यू नो, you're going to get the best friends here, you're going to get the best memories from this time. And let me tell you, अगर मैं अपने कॉलेज लाइफ को और अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की लाइफ को रेफर करता हूँ, आपकी सबसे अच्छी डीपीज जो होती हैं ना, जो आप सोशल मीडिया या इंस्टा पे थोड़ा स्वैग के जरिए डालना चाहते हैं, वो भी कॉलेज लाइफ से ही मिलती हैं। तो जब भी आप थोड़े सैड हुआ करेंगे तो इसी कॉलेज लाइफ को रेफर करेंगे। बट देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों की दोनों यहाँ डिफाइन हो रही हैं। योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर फ्यूचर, योर ओन एस्पिरेशंस, आपके अपने ड्रीम्स, ये सब चीजें जो हैं अभी ढल रही हैं। यू आर ट्राइंग टू गिव देम अ शेप। और सबसे सुंदर बात क्या है, सबसे ब्यूटीफुल द फैक्टर इज दैट यू आर नॉट जस्ट मेकिंग योर लाइफ ब्यूटीफुल, यू आर नॉट जस्ट एडिंग टू योर ओन लर्निंग। आप कुछ भी करते हैं, इट इज नॉट अबाउट पबजी प्लेइंग और समथिंग। आई एम सेइंग आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। मतलब मैं एज ए टीचर और मेरे साथ मेरी पूरी टीचिंग कम्युनिटी, आई कैन से ऑन देयर बिहाफ that we trust you, we don't have anything else to do। मतलब हम टीचर्स का जो 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 काम है ना, वो तो आपको पढ़ाना है। और वो पढ़ाना क्या है, वो जिंदा रहना। मतलब एक बात है, आप लोगों ने पोलो कोयलो का नाम सुना होगा, एल्केमिस्ट उनका नॉवल है। मैं बीच बीच में जब आपको ये कहता रहूं ना कि आपने पोलो कोयलो का नाम सुना होगा, देयर इज अ नॉवल बाय हिम, द एल्केमिस्ट, और रॉबिन शर्मा इज देयर, और देयर इज ट्यूजडेज विद मूरी, या फिल्मों के नाम बताऊंगा, तो वो मेरी थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी है, जस्ट टू ड्रॉप सर्टन थिंग्स इन योर माइंड। Those who have watched the movies, that's perfect. And those who have not, I'm just asking them, I'm inviting them to be a rebel in learning, कि वो भी थोड़ा सा और मतलब अच्छे से उन चीजों को और करने लगे। अब जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ऐसा मतलब एक वर्ड है, अभी ये जो इंट्रोडक्शन है, आई एम जस्ट विलिंग दैट आई कैन मेक यू फील माय विलिंगनेस टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर लर्निंग। तो उसमें जो मैं चाहता हूँ, मैं कोई इनकलाब नहीं लाना चाहता हूँ। मतलब मैं या आप या कोई भी, वी टीचर्स आर नॉट विलिंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, बिकॉज द इनकलाब केम, लाइक वी डिड हैव गांधी, भगत, हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, आपके फ्रेंड्स बहुत मेहनत करते हैं, दे हैव गॉट चेंजेस इन लाइफ। तो व्हाई दिस पर्टिकुलर चेंज इज रिक्वायर्ड टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट लर्निंग, द वे अहेड? मतलब आप एक लर्नर हैं, बिल्कुल, आप एकलव्य की तरह एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं। आप हमारी एब्सेंस में भी बहुत कुछ सीखते हैं, आप अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, दुनिया से सीखते हैं। हम लोगों में और बंदरों में देखिए फर्क यही है, वो पूंछ वाला फर्क नहीं है बस। वी कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। मतलब हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकते हैं। मैं आपकी बातों से सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न, आई कैन रीलर्न, आई कैन अनलर्न। मतलब मैं फिर से भी सीखूंगा आज कुछ आपसे, मैं अनलर्न भी करूंगा बहुत सारी बातें। तो इन सारी बातों के बीच में जो बात आती है कि why this change is required in your career communication, in my communication with you। I'm no more a teacher। मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक फैसिलिटेटर हूँ। आई एम जस्ट अ टॉर्च बियरर। मेरा काम एज ए टीचर, या आपके सभी टीचर्स का काम एज ए टीचर, सिर्फ इतना सा है कि जिस तरफ आप अच्छे हो सकते हैं, मैं उस तरफ आपको लेकर जाऊं। अब इतना सा ही इनकलाब चाहिए हम सब लोगों को। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस इज व्हाट आई एम बीइंग टोल्ड बाय माय टीचर्स, माय मेंटर्स। मेरे बड़ों ने मुझे क्या बताया है, आप अपने लिए अच्छे नहीं हैं, इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट लविंग एनीवन एल्स, फॉरगेट अबाउट केयरिंग फॉर एनीवन एल्स। आप अगर खुद के लिए थोड़ा सा भी नीचा महसूस कर लेते हैं ना, द वर्ल्ड स्टार्ट्स गिविंग अ डैम अबाउट यू। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, यू लुक एट द मिरर। मतलब मैं अब सुबह ये मफलर शफलर सेट कर रहा था जब, आई न्यू दिस थिंग, लाइक क्या मतलब, क्या कैसे कोई मुझे मेरी मर्जी के बिना कमजोर बता सकता है? मतलब आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द डिफीट। मतलब जैसे होता है ना, वो कविताओं में बात आती है कि जग अभी जीता नहीं है और मैं अभी हारा नहीं हूं। हम लोगों को कुछ वैसा करना है। एक मेरे बड़े भाई साहब हैं, नवीन गुलिया। अब फिर वो बुक का रेफरेंस आ रहा है। आप में से अगर किसी ने उनको कौन बनेगा करोड़पति में देखा हो अमिताभ बच्चन के साथ, सो नवीन गुलिया इज अ मोटिवेटर एंड ही इज एन, ही इज अ सोशल वर्कर वो है, और एडवेंचर स्पोर्ट्स में उनका नाम है।
हुआ क्या कि व्हेन ही वाज इन द आर्मी, मतलब उनकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी नवीन गुलिया की, वो आप सर्च करिएगा, गूगल करिएगा उनको, ही हैज गॉट अ प्रीटी मच, मतलब मैं आपको उनको उनको आपकी फैमिली का हिस्सा बनाने जा रहा हूँ आज। जैसे ही आप उनके बारे में सुन रहे हैं, यू आर फ्री टू लाइक कनेक्ट विद हिम। नवीन जी, नवीन भाई हैज गॉट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन हिज किटी। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि वो नॉन स्टॉप ड्राइविंग गुड़गांव से लेके मार्सिमिक ला, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इंडिया का ही नहीं, एक तरह से वर्ल्ड का, वहां तक वो नॉन स्टॉप अपनी टाटा सफारी लेके जाते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कायम है। आप कहेंगे ठीक है, सामान्य बात है, एवरीबॉडी ड्राइव्स। आई एम टेलिंग यू, ही इज पैरालाइज्ड बिलो द वेस्ट, मतलब वो उनका नीचे का हिस्सा बिल्कुल पैरालाइज्ड है। उनकी जो ट्रेनिंग थी एज एज अ कमांडो इन द आर्मी, उस दौरान उनको एक एक्सीडेंट हुआ था, एंड डॉक्टर्स सेड he won't be like able to even push his wheelchair. आज नवीन गुलिया एक्सपेडिशंस पे जाते हैं और बर्फ देखने जाते हैं, और मुझे ध्यान है उनके पास अभी टाटा महिंद्रा गेटअवे है और एक सफारी भी है, और उनके पास खूब, मतलब वो एडवेंचर स्पोर्ट्स और ड्राइविंग के शौकीन है। वो एक बात कहते हैं, किसी ने कहा, वो बोले कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा था तो मेरे पास से बात कर रहे हैं, यार हुण ना ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, मतलब विल गो टू द माउंटेन्स, इसे ਹੁਣ ਆਪਾਂ मार्समिक ला जाना है या ਹੁਣ ਆਪਾਂ रोहतांग जाना है। तो नवीन भाई बोलते हैं, कहते हैं कि एडवेंचर के लिए या वहां जाने के लिए आपको गाड़ियों की जरूरत नहीं है, आपको दिल की जरूरत है, आपका मन होना चाहिए कुछ करने के लिए। और नवीन को मैं नवीन जब बोलता हूँ या मैं आप लोगों को बोलता हूँ, हमें मोटिवेशन के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। आई एम आस्किंग यू, डोंट बी फैसिनेटेड बाय दिस प्रवीण शर्मा हु इज सेइंग कि आपकी ताकत को आपके मन में है। आपको सब पता है, आप इतने अच्छे लर्नर हैं, आपको सब कुछ पता है दैट यू कैन जस्ट इग्नाइट द स्पार्क, आप रिकिंडल कर सकते हैं उसको, जैसे 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 हम हाथ गर्म कर देते हैं और ऊर्जा वापस आ जाती है। नवीन says we don't need to take motivation from those who have not struggled in life. हमें उन लोगों से मोटिवेशन लेनी चाहिए जिन लोगों ने लाइफ में स्ट्रगल किया है, ऑड्स को बीट किया है। वो प्रोबेबली वैसा नहीं कर सकते थे मगर उन्होंने किया। और ये आप पे क्यों लागू होती है, स्टूडेंट्स पे क्यों एप्लीकेबल है? यू हैड अ चॉइस टू डिनाई एजुकेशन, यू हैव अ चॉइस टू नॉट टू लाइक वॉच वीडियोज विच आर एजुकेशन रिलेटेड, यू हैव अ चॉइस not to talk to your friends, you have a choice not to respect your teachers, you have a choice not to have feelings for your society, for your country, for your family। but नहीं, आपकी चॉइस तो उल्टी हो जाती है, आप कहते हैं कि नहीं, I'm going to make a choice and choices are going to make the difference। मतलब आपका करियर या कोई भी बात होती है उसमें। मैं अब आपको आज पॉडकास्टिंग की तरफ लेके चलता हूं। तो जो अभी हम लोगों ने जो बात की है अभी इन दीज 12-13 मिनट्स, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? आप जाकिर खान को सुनते होंगे ना, या आप नीलेश मिश्रा को सुनते होंगे। दोस्तों, मेरा नाम नीलेश मिश्रा है, मैं कहानियां सुनाता हूँ, ऐसा कुछ आप सुनते होंगे, या आप मुझे सुनेंगे और आज के बाद लोग आपको सुनेंगे क्योंकि आप पॉडकास्टिंग करने लगेंगे। मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग स्पॉटिफाई यूज करते हैं, गाना.com यूज करते हैं, या आईट्यून्स का भी जो एक पॉडकास्ट सर्विस है उनकी, वो भी यूज करते होंगे। स्पॉटिफाई और गाना दोनों में से कुछ बताइएगा चैट्स में कि अगर आप स्पॉटिफाई और गाना यूज करते हैं। और साथ में ये भी बताइएगा, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं थोड़ी चाल चल रहा हूं आपके साथ, क्या आप चाहेंगे कि आपके दोस्त स्पॉटिफाई और गाना पे अपने शो चलाते हो? अब ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आई जस्ट विश कि आपके दोस्त उस पे चलाएं, क्योंकि आपके दोस्त आपको चाहेंगे सुनना और आप उनको सुनना चाहेंगे। तो ये पूरी बातें हैं। अब नीलेश मिश्रा, जाकिर हैं, या नावेद, ही इज वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन जो रेडियो मिर्ची में है, बहुत पॉपुलर हैं। अब तो इंटरनेट के जरिए हम सब तक सब कुछ पहुंच ही जाता है। यू डोंट नीड टू गो टू दिल्ली और चंडीगढ़ और टू सम अदर प्लेस। मैं यहाँ बैठा बैठा देखिए कितनी खूबसूरत जगह के लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो मुझे बताया गया है कि गाना कर रहे हैं जी, और आपके कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, मैं आई कैन सी दैट। मैं आपको एक पोइम सुनाता हूँ, वो मेरे जो पोइट्री का कलेक्शन है जो सर ने जिक्र किया, कोने का कैबिन, उसी का हिस्सा है। और आप नीलेश मिश्रा को सुनते हैं, कल रात वो लाइव भी थे, मैं भी सुनता हूँ, और बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत स्लो हैं, और बड़ा मतलब मजेदार, अच्छा लगता है उनको सुन के। और आप लोग खुद भी बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको पता है। आज के बाद देखिएगा आपके शोज कैसे आते हैं। एक पोइम से शुरू करते हैं, और ये जो कविता है, अब देखिए इसको पॉडकास्ट की तरह अगर हम शुरू करना चाहें, पॉडकास्ट मतलब एक ऑडियो शो की तरह शुरू करना चाहें, तो वो कैसे हो सकती है? एक
छोटी सी, इसको हम लोग नज्म बोलते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान एक एक काउंसिल है, कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान, वो नेशनल काउंसिल है उर्दू प्रमोशन के लिए, इंडियन गवर्नमेंट का, एचआरडी मिनिस्ट्री का, वो उर्दू में डिप्लोमा करवाते हैं। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, आई रिमेम्बर इट करेक्टली, मैंने वो डिप्लोमा किया था। तो आई हैव अ डिप्लोमा इन उर्दू, बट प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि लोग नहीं मिल पाए जो उर्दू मेरे आसपास में बोलते बोलते तो हैं, लिखते नहीं है। तो कोशिश है कि उस तरह से करते हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं। चलिए, ये बात शशांक की है, मेरा दोस्त है, अभी किसी बैंक में मैनेजर है, और खोया नहीं है, बट बात नहीं होती है। मतलब चीजें कभी खोती नहीं है, आप सिर्फ उनकी जगह भूल जाते हैं। तो कोशिश करूंगा कि उससे भी बात करूं आज के सेशन के बाद। मैं और शशांक जब बीएड कर रहे थे, वी वर लर्निंग हाउ टू टीच, तो खाना आता था लिफाफे में पैक होकर। हॉस्टल की मेस बंद हो गई थी, जून का महीना था, जब गर्मियां होती हैं यहाँ हरियाणा में या इस नॉर्थ के इस हिस्से में। तो वो लिफाफे आते हैं सफेद सफेद रंग के, तो उसको खोलना होता था, फिर उसको अपने आप परोसना होता था खाने के लिए। तो हम लोगों ने देखी एक चीज जो हम लोगों को महसूस हुई, एक एक बड़ी अच्छी सी बात, कि शशांक उसको खोल रहा है और कह रहा है यार हमसे नहीं खुलेगा ये, तुम प्रवीण तुम खोलो। बिहार का था वो, तो बड़ा मजा आता था बात करने में। तो वो कहता हम नहीं खोल पाएंगे भाई, तुम खोलो यार इसको, हमें समझ नहीं आता है कि हम ये गांठ क्यों नहीं खोल पाते हैं, जो वो गांठ लगा के देते थे ना, टाई करके नॉट लगा के देते थे। आई सेड ठीक है, तो मैं खोलता हूँ। लेकिन तभी मैंने उसको ये कहा, मैं मेरे पास नोकिया 1100 फोन था, पूछिएगा अपने बड़ों से, नोकिया 1100 एक टॉर्च वाला फोन आया था, बड़ा क्विक, और हम लोग उस पर बिना देखे टाइप कर लेते थे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था। तो चलिए, अब हम वो नज्म सुनाता हूँ आपको। गजल में काफिया जुड़ता है, मक्ता और मतला वाली कहानी होती है, नज्म में हम थोड़ा खुले चलते हैं, गुलजार साहब की तरह। तो सुनिए। तुम्हें शायद ही याद हो, और ये दोस्तों को सुपुर्द कर रहा हूं मैं आप लोगों को, जो एक दूसरे के दोस्त हैं ना, कॉलेज लाइफ से निकलेंगे ना, तो फिर ये नज्म थोड़ी सी शायद एप्लीकेबल हो सकती है। कि तुम्हें शायद ही याद हो, शायद इसलिए क्योंकि इन बीते बरसों ने मेरी यादों की जमीन पर एक गर्द सी जमा दी है। हो सकता है तुम्हारे वहां भी हवा का तेज झोंका ना आया हो। मैं याद दिलाना चाहता हूँ हमारी वो छोटी सी बहस, जब तुम लाई थी मेरे भेजे खत एक सफेद लिफाफे में बांधकर, मेरे लफ्ज मेरी ही आवाज में सुनने के लिए। किसी गांठ लगी दिखी थी मुझे, मैंने तुम्हारे हाथों से छीनना चाहा था, बस यूं ही। जब हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाया, वो बहुत छीनने वाली, मतलब मैंने तुम्हारे हाथों से छीनना चाहा था, बस यूं ही तुम कस के पकड़े थी उस सफेद लिफाफे को। जब हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाया, तो वो गांठ और सख्त हो गई थी। जब हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाया, तो वो गांठ और सख्त हो गई थी। तुम्हारे लाख कहने पर भी मैं वो गांठ ना खोल पाया था, ना बता पाया था उसकी वजह। तुम नाराज हो गई थी, तुम तो आज भी नाराज हो। क्या अब भी ये समझ नहीं आया? मुझे बंधन बांधना आता है, बंधन खोलना न पहले आता था, न इन बीते बरसों में सीख पाया हूं। ये कहानी है मेरी और आपकी, टीचर की और स्टूडेंट की, आपकी आपके दोस्तों की, कि बंधन बांध लेंगे आप, छोड़ नहीं पाएंगे, चीजें खो नहीं पाएंगी आपसे। तो ये इतनी सी बात है। अब आइए, अब जैसा कि मैंने किया उससे बेहतर आप लोग कर पाए, उससे एक अच्छा आलम आप बना पाएं, उससे अच्छी तहजीब के साथ आप बोल पाएं, उससे अच्छा प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ जिसको आप बोलते हैं, वो आप कर पाएं, उस तरफ आप चलते हैं। और मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, और उस स्क्रीन शेयर करते हुए मैं जब आपसे चीज़ें बांटूंगा, और ये लीजिए हम अब स्ट्रीमिंग की सेटिंग करते हैं, और शेयर्ड कंटेंट की टेम्पलेट पे जाके मैं आपके साथ जब चीजें शेयर करूंगा, उसमें हम लोगों को एक बात समझ में आएगी कि जो जो बोलना है, जो जो हम लोगों का फंडामेंटल एक 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 फीचर ऑफ लाइफ है दोस्तों, जो जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, वो बहुत आसान है। मतलब वो बहुत इंटीग्रल भी है मेरी और आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि मैंने बहुत लोग बोलते देखे हैं, मैंने लोग एक तरह से जिसको आप कहते हैं कि समझते देखे हैं, मैंने बच्चों को अपनी बातें मन की कहते देखा है। तो बस वही मन की बातें एक मैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में जब नौकरी करता था, लगभग 7 साल मैंने वहां बहुत अच्छे सीखते हुए बिताए हैं। उन 7 years में व्हाट आई गॉट
was a chance to work with Amity का एक कम्युनिटी रेडियो है, तो वहाँ मैंने तीन चार शोज प्रपोज किए। एक ऑटोमोबाइल रिव्यू था जो हम लोगों ने रन किया। ऑटोमोबाइल रिव्यू मतलब गाड़ियों के रिव्यूज करते थे हम। और राज की बात बता रहा हूँ, मुझे उस वक्त गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो बाद में सीखी। बट इंसान में ये कमाल की काबिलियत है कि वो सही बातें कर सकता है, पहली बात। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। एक शो था हमारा संविधान, वो अभी भी चल रहा है, कुछ टाइम पहले तक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। तो बड़ा मजा आया संविधान के सभी अनुच्छेदों को, ऑल द आर्टिकल्स वी प्लान दैट विल ब्रिंग देम इन ईच एपिसोड इन सिंप्लीफाइड वेज। एक और शो सोचा था, और मुझे ध्यान है कि ये फरवरी 2013 की बात रही होगी। इट वाज फेब 13 14 आई प्रपोज्ड अ शो कॉल्ड मन की बात, but it was okayed, and then we were working on the productions. Then honorable prime minister launched his मन की बात, and then we said कि ठीक है, अब वो सुनते हैं, अपने मन की बात को हम इसी तरह से कभी सेशंस में लोगों को बात करके कह देंगे। दिस इज समथिंग विच इज अ मोटो फॉर एवरीवन। इनको जब आप कुमार विश्वास जी को सुनते हैं तो इनको भवानी दादा कहते हैं। मैं भी कह सकता हूँ भवानी दादा, बड़े भाई, या आप गुरु मान लेते हैं कवियों को, ही इज अ पोएट। और ध्यान रखिएगा, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि मैं मतलब मैं यूज कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है मैं को हम की तरह बोल देना। तो वो सिखाया है मेरे गुरुओं ने मुझे, मेरे टीचर्स ने मुझे, मेरे मेंटर्स ने मुझे, उन्होंने बोलना सिखाया है। मैं ये कहूँ कि मैं उतना अच्छा नहीं बोल सकता हूँ जितना अच्छा वो लोग बोल सकते हैं जिन्होंने सिखाया। तो ये बात है। जब आप आज सुबह उठे हैं और ये 11:22, 11:25 के आसपास जब आप इसको देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। तो जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से पढ़ के सो। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यू नॉर्मल है, और ध्यान रखिएगा, ये न्यू नॉर्मल मेरी आपकी लाइफ से जाने वाला नहीं है। ये वैक्सीन्स और कोरोना जो है वो हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो चलिए थोड़ा फटाफट चलते हैं। ये थोड़ी सी वो जर्नी है, मैं इसको स्किप करता हूँ। पढ़ाना शुरू किया, आप सीखना शुरू किया, उसके बाद एक एक मिशन है, आप लोग गूगल करिएगा इसको जरूर, एडुसो मीडिया, बिकॉज दिस इज अ स्टूडेंट मूवमेंट इन इंडिया, एजुकेशन थ्रू सोशल मीडिया। ये 10 साल से चल रहा है एक मिशन, जिसका हिस्सा अतुल हैं, और जिसका हिस्सा बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी हैं, वो फिल्मों में भी हैं, वो इंटरव्यूज लेते हैं, वो मीडिया में भी हैं, वो बीटेक करने के बाद में और दूसरे करियर्स में भी चले गए हैं। वो संजय लीला भंसाली के साथ में डायरेक्शन भी करते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग भी करते हैं। चलिए यहाँ आते हैं। अब मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ, आप इन सबको थोड़ा थोड़ा पहचानते होंगे। ये साहित्य रेडियो हैं, हरपाल जी हैं, हिंदी के प्रवक्ता हैं हरियाणा में, और वो इस सेशन को देख भी रहे हैं। साहित्य रेडियो स्पॉटिफाई पे आप ढूंढ पाएंगे। देवदत्त पटनायक talks about the mythology of India, particularly Hinduism also. Mahabharat in audio is there. We have got Michelle Obama. We have got Man Ki Baat. Whenever you listen to something over the internet, my dear friends, whenever you are using internet, that is what a podcast is. मतलब जब आप इंटरनेट पे कोई चीज यूज करते हैं, whenever you are looking at something which is just you say कि वेब के थ्रू देख रहे हैं, so that is called a podcast. मुसाफिर स्टोरीज, दे आर आई एम कनेक्टेड टू देम आल्सो। मुसाफिर स्टोरीज जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से वर्ल्ड के 5 अच्छे पॉडकास्ट्स में आता है, इंडिया के 5 पॉडकास्ट्स में आता है अच्छे से ये। तो ये मुसाफिर स्टोरीज जो है ये ट्रेवल के बारे में। अब आप तो देखिए JNK में है, खूबसूरत जगह है, अब वहाँ के बारे में बातें करना कि देखिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं, एक इस तरह से। एक आपके जम्मू में एक मेरे बड़े छोटे भाई हैं, बड़े मतलब बड़े छोटे मतलब वो अपने कर्म से और अपनी हिम्मत से बहुत बड़े हैं। मैं उनका नाम और उनके बारे में आपको चीजें बताऊंगा जरूर। वो पैरास्केटर हैं, अगर कोई जानता होगा तो मुझे बताइएगा। ही इज अ पैरास्केटर, ही इज वर्ल्ड चैम्प, फास्टेस्ट पैरास्केटर हैं 100 मीटर्स में। मुझे आप उनका नाम अगर आपको मिलता है, वो जम्मू के हैं, उनके बारे में बताइएगा जरूर। एंड हिज सिस्टर, यंगर सिस्टर, आवर यंगर सिस्टर, शी इज अ फूड ब्लॉगर ऑल्सो। उनके यूट्यूब पे जसलीन के नाम से वीडियोस भी आते हैं, वो जम्मू की अलग अलग चीजों के बारे में कुछ बताती होती हैं। ये तो पॉडकास्ट है, चलिए आप ऑडियो में ऐसा कर सकते हैं। अतुल ने बताया था कि आप राइटिंग में ऐसा कर सकते हैं, और आप ऑलरेडी व्लॉगिंग मतलब ब्लॉगिंग करते हैं। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूँ, पॉडकास्ट होते हैं, व्लॉग्स होते हैं, लेकिन एक चीज वॉडकास्ट भी होती है। मैं जो आपके साथ करता हूं, जो अभी मैं कर रहा हूं, वो वॉडकास्ट की तरह है। मतलब इस वीडियो को आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट दिस टीचर। आई एम बिलीवर दैट
सीखना जो है वो लाइफ में एक सेलिब्रेशन है, और टीचर होना उससे भी बड़ा सेलिब्रेशन है, माने ना माने आपकी लाइफ में। थैंक यू, वी गॉट द नेम। चंदीप हैं जो पैरा स्केटर हैं। एक खास बात है मैं आपको जो बताना चाहूँ, आप सीखते रहते हैं लाइफ में, क्या सीखा उसके साथ साथ ये भी बड़ा जरूरी है कि सीखें कैसे, मतलब सीखना कैसे सीखें, ये बड़ी बड़ी मजेदार सी सीखने की बात होती है। चलिए लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। आम एज योर रिप्रेजेंटेटिव मैं गाना पे भी हूँ, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एंकर पे भी हैं हम लोग, यूट्यूब पे भी एक चैनल है, मैं आपसे शेयर करूंगा। यूट्यूब पे तो वैसे दो चैनल हैं, एक पोइट्री के लिए है, एक कल आपने जो एक स्टाइलस बनाने का देखा था ना, जो ये स्टाइलस होते हैं, देखिए जो ये पेन्स होते हैं इस तरह के जो फोन पे चल जाते हैं, वो पेन्स बनाने का स्केच से घर में बनाने का जो वीडियो देखा था वो उसी चैनल पे है। तो चलिए आगे चलते हैं, पॉडकास्टिंग सीखते हैं। हम लोग जब आज बात करेंगे तो हम लोग पॉडकास्ट्स की एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि इवन इफ यू टॉक अबाउट एनीथिंग दैट विल बी श्योरली एजुकेशन, मतलब वो एजुकेशनल ही होगा। तो ये कुछ पॉडकास्ट्स के लिंक हैं, मैं आपसे शेयर कर लूंगा इस प्रेजेंटेशन का, इस ब्लॉग का जो लिंक है, जैसे अतुल ने किया, या हम उल्का जी की प्रेजेंटेशन भी आपसे शेयर करेंगे। कल आप लोगों ने ये सुना होगा। क्यों ऑडियो चाहिए मुझे और आपको? क्योंकि लिसनिंग एंड लर्निंग दीज आर टू इंटीग्रल थिंग्स, यू कैन नॉट स्टॉप। मतलब आप मुझे किसी, यू पुट मी इन अ केव, यू डोंट नीड फूड, आई कांट स्टॉप लर्निंग। मतलब मैं सीखना नहीं छोड़ सकता हूँ। you ask me to talk to small children, you ask me to talk to adults, you ask me to not talk and stay silent. Learning cannot stop and listening cannot stop. इंसान सुनना देखना आप आंख बंद कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ईयर्स आपके बंद नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो आपके ईयर्स में आता रहता है, चाहे वो सन्नाटा हो। और खामोशी बहुत बोलती है, खामोशी अक्सर बहुत बोलती है। हम लोग चुप रहना कम पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर चुप होंगे ना तो शायद खुद को ना परेशानी हो जाए। आज जो पॉडकास्ट आप सीखेंगे उसमें अफोर्डेबिलिटी है, और अफोर्डेबिलिटी मतलब यू डोंट नीड टू स्पेंड एनीथिंग, मींस इफ टुडे एनीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूं आप लोगों को, इफ एनीबडी इज वाचिंग, इफ यू कैन वॉच, it means you have a smartphone. If you have a smartphone, then you can afford to make a podcast. डिजिटल वेलबींग मतलब थोड़ा सेहत बचेगी, ये थोड़ी आंखें जो हैं वो थोड़ा कमजोर होने से बचेंगी, इस तरह की चीजें हम सीखेंगे। चलिए, नाउ टेल मी व्हाट इट इज, मतलब ये क्या चीज है? ये है ग्रामोफोन। फिर उसके बाद में आती है बहुत प्यारी सी ऑडियो कैसेट्स, मैं अपने पास रखता हूँ। देयर आर सर्टेन ऑडियो कैसेट्स दैट आई हैव, आई एम नॉट एबल टू फाइंड देयर सॉफ्ट कॉपी, मुझे मिल ही नहीं रही है डीवीडीज उनकी या सीडीज उनकी, बट ये आप देख सकते हैं, ये कैसेट आती है। एंड प्रोबेबली सम ऑफ द व्यूअर्स माइट बी एबल टू रिकॉल दीज थिंग्स। ये एक वॉकमैन है, ये भी एक मेरे पास रखा हुआ है, चलता नहीं है, कैसेट प्लेयर है फिलिप्स का, छोटा सा वॉकमैन है, चलता नहीं है। ये आईपॉड है, आईपॉड केम इन 2004 एंड देन 2004 चेंज्ड एवरीथिंग। means after 2000, because you must be of the same generation, मतलब आप लोग आए हैं ना, बस आपका जो अवतरण हुआ है वो हम सब लोगों के लिए, खासकर for my generation, that has changed everything, you know. We moved from black and white or no TV to black and white TV to color TV to smart TV to we don't know। अब वो ऐसे आईने आ जाएंगे जिसके ऊपर में वो चीजें चलने लगेंगी। ऐसा एक कल एक क्रिसमस पे बेस्ड फिल्म देखी थी, प्रियंका चोपड़ा जी भी हैं उसमें, कि वो वैसा एक रियलिटी क्रिएट हो जाती है। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉडकास्टिंग, फिर हम लोग आज पॉडकास्टिंग की बात करते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है, इट्स अ 21st सेंचुरी फिनोमिना। इंटरनेट के जरिए कुछ भी ऑडियो ट्रांसमिट करना जो है वो ऐसा होता है। साउंड क्लाउड एक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन साउंड क्लाउड एंड देन वी केम टू डू ऑल दीज थिंग्स। अगर आप लोग एडुसो मीडिया सर्च करेंगे तो आपको मैं और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग भी उसका हिस्सा मिल जाएंगे। कभी ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, तो थोड़ा बहुत कोई हैशटैग एडुसो मीडिया लगा के जरूर करिएगा, ताकि हम लोग कनेक्ट हो सकें। एक छोटा सा टर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मैं बताता हूं ये क्या है, ये मैं क्यों स्टूडेंट्स को बता रहा हूं। आखिर कब तक हम गूगल से लेते ही रहेंगे? आखिर कब हम गूगल पे कुछ ऐसा डालेंगे जो दूसरे लोगों के काम आ सके? आखिर कब हमारे जो टॉपर्स होते हैं या हमारे जो स्मार्ट लर्नर्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होते हैं, आखिर कब वो इंटरनेट पे वो चीजें डालेंगे जो दूसरे स्टूडेंट्स के, उनके जूनियर्स के काम आ सकें? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मतलब वो कंटेंट डालना जो कॉपीराइट फ्री हो। अब ये कल की बात पे आते हैं, मैं क्यों बॉदर करूं कि मेरा ब्लॉग कोई कॉपी कर लेगा? मेरा काम शेयर करना है, बांटना है। अगर किसी के वो काम आ सकता है तो वो आए, क्योंकि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, और अगर मैं कर भी रहा हूं
तो मुझसे तक मतलब होना चाहिए। हाँ, अगर मेरे वर्क की क्वालिटी और मेरी ऑडियंस को वो हर्ट करेगा तो मैं कॉपीराइट को डिफेंड कर सकता हूँ। अदरवाइज पुट सम मटेरियल ओवर द इंटरनेट व्हिच कैन बी यूज्ड बाय लर्नर्स ऑफ एनी एज। यू माइट बी वेरी गुड स्टूडेंट इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स इन स्कूल्स, अब आप हो सकता है कि वो सब्जेक्ट ना पढ़ रहे हो, तो क्यों नहीं आप छोटे छोटे नोट्स प्रेजेंटेशंस बना के डालना शुरू करते। एक सलमान खान है, मैं भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सलमान खान नाम से खान एकेडमी के फाउंडर हैं। आप शायद उनके वीडियोस देखते हो या आपने आसपास देखा हो। सल खान, his nephew was having trouble with mathematics and something, so he made some videos for him, and then he realized that if my family member has a problem, that means people of his age will also be confused about the concepts. So he started making those videos, short videos, and started putting them online. फिर उनकी बात होती है, अब मेरे ख्याल से बिल गेट्स थे या एक और दूसरे वाले जो अपने स्टीव जॉब्स हैं, इनमें से किसी से, बिल गेट्स से प्रोबेबली, माइक्रोसॉफ्ट वाले वही हैं। तो वो उनको इन्वेस्ट करते हैं वो उनके उसमें, या किसी और ने इन्वेस्ट किया इंस्पायर होके उनसे देख के। और आज खान एकेडमी पिछले जब से भी हम लोग ये ध्यान कर रहे हैं कि लर्निंग मटेरियल या ऑनलाइन कोर्सेज आने लगे हैं, या जिनको आप मूक्स बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आए हैं, वो खान एकेडमी उसका बिगनर है, उसका पाइनियर है। तो वो शौक में किया ना, जैसा आप बस मन से शुरू करते हैं तो वो कुछ हो जाता है। और कम्युनिटी रेडियोज हैं, कल को हो सकता है कि जीसीडब्ल्यू परेड ग्राउंड का एक कम्युनिटी रेडियो हो जिसपे आप सब लोग सुबह से शाम तक शोज करते हो और अपने आसपास के एरियाज के लिए आप लोग बहुत अच्छे से सर्व करते हैं उन लोगों को, ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने गांव के लिए, लाइक यू कैन स्टार्ट थिंग्स फॉर योर विलेज, इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड्स के लिए एक सोशल अवेयरनेस मिशन आप यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन रेडियो। बस न्यूज मत दीजिएगा। और मैं तो वो रविश जी कहते हैं ना, न्यूज देखो ही मत, तो मैं कोशिश करता हूँ कि खबरें ना देखूं, क्योंकि पता नहीं अजीब सा लगने लगा है कि दुनिया से डराने का काम ऐसा लग रहा है ना मीडिया ज्यादा करता है, कि हम डर जाएं कि कुछ सही नहीं है। लेकिन फिर बड़ा मुश्किल है, एक बड़ा बड़ा खूबसूरत शेर है इसमें कि उन्हें नफरत हुई सारे जहां से, नई दुनिया कोई लाए कहां से। तो द वर्ल्ड इज स्टिल ब्यूटीफुल, आई एम टेलिंग यू मैन, बाय एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, हमें उनकी तलाश करनी है, उनके साथ जुड़ना है और उनको जोड़ना है। तो ये कुछ वैसी सी बातें हैं, ध्यान हटा लीजिए, थोड़ा नेगेटिविटी से और पॉजिटिविटी पे आ जाइए। मैं ऑप्टिमिज्म और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग है, मैं थोड़ा उसमें कम बिलीव करता हूँ। मैं राइट थिंकिंग सिखाई गई है मुझे। सो देर इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, देर इज अ नेगेटिव एटीट्यूड, बट देर इज अ राइट एटीट्यूड ऑल्सो। सो विल हैव अ राइट एटीट्यूड अबाउट इट। Right is like, if I can do something, I will do. If I cannot do something, even after trying, I won't spend time on it. इसको serenity बोलते हैं, इसको wisdom बोलते हैं। मतलब एक बहुत सुंदर प्रेयर है, सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं उसको, इंटरनेट पे जाएंगे तो वो मिलेगी। सबसे आसान आज यही है, मैं आपको लाइब्रेरी नहीं भेजूंगा। सेरेनिटी प्रेयर में क्या बात होती है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। कि हे भगवान, हे खुदा, हे ईश्वर, हे सच्चे पातशाह, यू गिव मी द पीस टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज एंड करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड नॉलेज is something which comes after this. It says that God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. अब दोनों में फर्क भी तो करना हो ना, कि मैं दीवार में ही सिर मारता रहूं और मुझे लगे कि वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ होता है उसमें। अब ये आज का प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं एंकर, ANCHOR, एंकर। नाउ एंकर इज, मैं आज के शो का एंकर। FM, अब ये कितना सुंदर URL बन रहा है इसमें, वेबसाइट इज anchor.fm. We are going to learn about anchor.fm. Those of you who are having a smartphone and you are curious, and I know you are smart also, मुझे पता है कि हमारा दिमाग कैसा चलता था। आप में से कुछ लोग हो सकता है गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसकी ऐप इंस्टॉल कर लें, हो सकता है कि आप मेरे कहने से पहले इस पे साइन अप कर लें, बट मैं खास बात बता रहा हूं आपको, प्लीज बिना पासवर्ड के अकाउंट मत बनाया करो। ये जो फेसबुक के जरिए और गूगल के जरिए और ट्विटर के जरिए और इंस्टा के जरिए डायरेक्ट लॉगिन होता है, तो दोस्तों, हाजरीन, हमारी जो प्राइवेसी है वो बहुत रिस्क पे चलती है। हालांकि देयर इज नो अदर वे, वी कैन नॉट हैव अ न्यू वर्ल्ड, बट स्टिल थोड़ा बहुत इंटरनेट मैच्योरिटी, थोड़ा बहुत डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में सोचें। आई एम नॉट इम्पोजिंग द वर्ड कॉल्ड साइबर सेफ्टी ऑन यू। मेरे एक बड़े करीबी, बड़े सिखाने वाले दोस्त हैं, रघु पांडे।
आप उनका सर्च करिएगा। रघु जो हैं, आप लगभग 10 साल से, उससे ज्यादा से कहूंगा तो उनका थॉट तो पुराना रहा होगा ना, वो इंटरनेट मैच्योरिटी पे बात करते हैं कि इंटरनेट को मैच्योर तरीके से कैसे यूज किया जाए। देखिए हम लोगों को फ्री का इंटरनेट तो मिलना शुरू हो गया, लगभग फ्री का या अनलिमिटेड या फिर खूब सारा रोज का कई जीबीज में। हम तो 2 GB वाले लोग थे भैया, जब देखते रहते खुलेगा पेज, खुलेगा फिर खुलेगा, मतलब वैसा। देखो मैं आपको एक फोन दिखाता हूँ, ये फोन देखिएगा, इस फोन में इंटरनेट चलता है। अब कैसे इंटरनेट में चलाता हूँगा, और इसमें देखिएगा, इसमें भी इंटरनेट चलता है, जिसमें खूब सारे आपके खूबसूरत कमेंट्स और स्माइलीज और इमोजीज आ रही हैं। तो हम लोग तो बड़ा ट्रांजिशन लेके पहुंचे हुए लोग हैं ना। तो अब हम जब बात कर रहे हैं इस पे, जो ये भी बातें हैं, बातों में से बातें निकलती हैं, चलिए मैं आपको फिर थोड़ा सा और अट्रैक्ट कर लेता हूँ बातों की तरफ। कि क्या होता है, एक पॉडकास्ट है, एंकर.fm एक वेबसाइट है, विच इज अ स्पॉटिफाई अंडरटेकिंग। मतलब स्पॉटिफाई जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पॉपुलर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। स्पॉटिफाई एक्वायर्ड एंकर एंड एक और को उन्होंने अपने खरीद लिया, उन्होंने एंकर को अपना हिस्सा बना लिया ना। एंकर allow us to like do something correctively, like हम लोग कुछ कुछ सही से कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग। और कुछ जो कमाल की चीजें होती हैं, जैसे हम जो जब एंकर की बात करते हैं या किसी और दूसरी चीज की बात करते हैं, तो देयर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी नाइस अबाउट लर्निंग। मतलब मैं अगर आप लोगों से अब जब बात करते करते ये देखता हूँ कि कुछ चीजें हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो क्यों ना वो फ्री में की जाए। सो एंकर इज अ वेबसाइट ऑन विच यू कैन मेक योर अकाउंट फॉर फ्री। आप करेंगे क्या क्या उस पर भैया, टीचिंग कर लो। आई एम नॉट वाई टू पुट दिस टीचिंग ओनली फॉर टीचर्स। मतलब हमने ही जिम्मेदारी ले रखी है क्या दुनिया को सिखाने की? या वो जो बोलते हैं ना कि एक पॉटर होता है, वो घड़े बनाता है और वो उसको पीटता रहता है, हम ही पीटते रहें क्या? नहीं करेंगे हम ऐसा। हम लोग तो चाक बन के रहेंगे। चाक समझते हैं ना, जिसपे वो मिट्टी घूमती है। जिसको सीखना है वो उसके ऊपर आके बैठे, वो उसकी अपनी लाइफ की कच्ची मिट्टी को घुमाए, और उसकी सिचुएशंस, उसके आसपास के लोग, उनका उनका माइंड मेकअप, वो टकोर लगाए, और फिर सुंदर घड़ा, सुंदर सुराही बनाए आप, और फिर उसकी खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाएं। अपने बारे में सेल्फ इन्हांसमेंट, you can enhance your personality by doing podcasting. You can make a very nice social profile. Blogging is a part of it. एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। ब्लॉगिंग इज अ अम्ब्रेला टर्म। मतलब ब्लॉगिंग बहुत बड़ी चीज है, वीडियो उसी का हिस्सा बन जाता है, एक प्रेजेंटेशन, एक फोटो, एक पॉडकास्ट। सो ब्लॉगिंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीथिंग। ये छोटी छोटी चीजें फिर ब्लॉगिंग में प्रेजेंट हो सकती हैं। सो ब्लॉगिंग इज अ बिगर डोमेन। मतलब वो तो अतुल महाराज जो बात कर रहे हैं, वो स्टोरी। सिंगर होंगे ना आप में से कुछ, म्यूजिशियन नहीं होता होगा आसपास में, बट फोक कितना सुंदर गाते होंगे आप अपने यहाँ का। आप भजन गाते होंगे, आपको बड़ी सुंदर बातें आती होंगी, आप रिलीजियसली कुछ चीजें फॉलो करते हैं, उनके बारे में बोल लेते होंगे, गा लेते होंगे। सो यू कैन पुट योर सॉन्ग्स विदाउट गोइंग टू एनी कंपनी कि टी सीरीज वालों मेरा गाना रिलीज कर दो। आप कहेंगे गाना रिलीज कर रहे हैं खुद ही। एक और खास बात है, ट्रेवल डायरीज। आप ट्रेवल डायरीज, मैं यहाँ बैठे बैठे आपकी बातें सुन के घूम सकता हूँ जहां जहां आप गए हैं। तो ये चीजें आपको करनी है। ये कुछ चीजें हैं जो आप तुरंत फटाफट पढ़ लीजिएगा, और कमेंट्स में बता भी दीजिए इनमें से कौन सी बातें आप करेंगे या कर सकते हैं। और यू विल एडवाइज समबडी टू डू इट। मतलब आप अपने, अगर अगर आप ये कहें कि प्रवीण सर आप कुछ करिए, तो आप क्या चाहेंगे इनमें से मुझसे? म्यूजिक ऑडियो मत कहिएगा, वो थोड़ा सुनने का मन ज्यादा है। हालांकि इट्स ऑल रिदम। व्हेन आई नरेटेड, आई रिसाइटेड दैट पोएम, इट वाज अ स्टोरी कि तुम्हें शायद ही याद हो। वो नज्म जो होती है ना, वो कहानियों की तरह चलती हैं, और जो पोइट्री है ना, वो रिदम पे खेल है उसका। रिदम हो तो कुछ भी बन जाता है। मतलब मैं अभी आपको एक पोएम दिमाग में है मेरे, मैं एक आपको स्पीच सुनाऊंगा रिदम में। सो पोइट्री इज ऑल लाइफ। Somebody says I'll do storytelling. Some of you are saying you'll be doing, and you know what? जो ये आप लाइव चैट में कमेंट कर रहे हैं ना, दिस इज अ कमिटमेंट आई एम टेकिंग फ्रॉम यू, दैट ईदर यू विल डू इट और यू विल आस्क समबडी टू डू इट। या तो आप अपने दोस्तों को मोटिवेट करेंगे। हमेशा चीजें खुद करनी जरूरी नहीं है। देखिए मैं पायलट नहीं बना, मेरी स्टूडेंट पायलट है, और वो इंडिया के लीडिंग फाइटर पायलट्स जो जो बोलते हैं ना कि वो इंडक्ट किए एयरफोर्स में, तो वो 10-12 लोगों में है। एंड आई हैव गॉट स्टूडेंट्स वर्किंग इन द मूवीज, आई हैव गॉट स्टूडेंट्स वर्किंग एज आरजेज। मैं तो नहीं बना ना, मैं तो टीचर हूँ। आई हैव गॉट स्टूडेंट्स हु आर ऑथर्स, हम भी कोशिश कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। अब अतुल ब्लॉगर है, देखिए इस तरह से आप लोग भी कुछ करेंगे। तो चीजें औरों को सिखाना भी सीखना है।
आपने सब ऑडियो ड्रामा करेंगे, श्रुति वर्मा ने कहा है, somebody says इंटरव्यू एंड ये जरीन जी हैं, बानू जरीन, फोक कल्चर, दिस इज सच अ नाइस थिंग, मेरे मन के बहुत, मेरे दिल के बहुत आसपास है ये चीज। आपने नहीं संभाला ना, तो जो बुजुर्गों की जो पीढ़ी है, जो लोग आपके पास हैं अभी, जो आपके बड़े हैं अभी आपकी फैमिलीज में, नाना दादा जो बुजुर्ग हैं, वो लोग आखिरी जनरेशन है। आई एम सेइंग इट विद लाइक स्ट्रिक्टनेस आल्सो, यू वोंट हैव समबडी टू टेल यू हाउ इट वाज व्हेन दिस वाज लाइक दैट। तो जितना हो सके उनसे चीजें छीन लीजिए, ले लीजिए उनसे, नहीं तो उनके साथ चली जाएंगी। फोक कल्चर को, अपने अपने जो 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 इतने सुंदर सुंदर गांव हैं, उनमें कहानियां हैं, उनको डॉक्यूमेंट करिए, हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन करिए। बिकॉज मेरे गुरुजी हैं अनूप लाठर सर, जिन्होंने हम लोगों को बोलना सिखाया, वो कहते हैं कि जिस कौम को अपनी विरासत का एहसास नहीं होता, उस कौम का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन हम लोग अपना इतिहास संभाल के रखेंगे। आइए पॉडकास्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कहाँ जा रहे हैं? एंकर की वेबसाइट पे। आप एंकर वेबसाइट पे जाते हैं, anchor.fm पे, एंड यू मेक एन अकाउंट, साइन अप। साइन अप मीन्स यू विल बी व्हाट यू विल बी डूइंग, ईमेल, सेट अ पासवर्ड एंड गिव इट अ नेम। गलती से भी मेरी तरफ से, मैं टीचर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन आप लोगों को हिदायत दूंगा, आप स्टूडेंट्स हैं अगर, कि पासवर्ड सेट करके ही अकाउंट बनाएं, डायरेक्ट लॉगिन ना करें, क्योंकि अगर वो ईमेल आईडी बंद होगी तो क्या करेंगे? मुश्किल नहीं हो जाएगी? और दूसरा, अगर आपने गलती से मेरे फोन में अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर दी भैया, तो मेरे व्हाट्सएप में आपके नंबर फिट हो जाएंगे, मैं ये ढूंढने लगूंगा कि मैं इतने स्टूडेंट्स को कैसे जानता हूँ, या मैं इतने टीचर्स को कैसे जानता हूँ। तो कोशिश करें कि स्टैंड अलोन अकाउंट्स ही बनाएं। पासवर्ड्स आप भी याद करना तो अब जिम्मेदारी है ना। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ आसान की है, उसने वक्त बचाया है, मतलब आपके लिए। बचे वक्त से किया क्या? किया क्या मतलब, हम लोग क्या मोमोज को बस तलने पे चले गए बस, और तो क्या किया हम लोगों ने? अगर हमने बचे वक्त से कुछ नहीं किया ना, जो हम लोगों को फैसिलिटी मिली है, तो फिर वो देखिए ठीक नहीं है। और लॉकडाउन से जो इंसान सीख के बाहर नहीं निकला भैया, तो उसको बस खुदा मालिक है उनका, तो फिर क्या होगा पता नहीं। एंकर.fm पे अकाउंट बनाएंगे। एंकर.fm पे जब आप अकाउंट बना रहे हैं, तो आप एक चीज देखेंगे वहां पे साइड में, इट सेज इट इज अ फ्री टूल, मतलब ये मुफ्त है, कोई पैसा नहीं देना है। You can monetize your podcasts, but later you can podcast with your friends. You can see how many people have listened to your podcast. There is some kind of trimming also. एक कैंची है, एक सीजर्स है, एक पेयर ऑफ सीजर्स है, मतलब you can cut some audios into pieces. You can add background music also, and you can send this to multiple platforms like Google Podcast, or you can take your podcast audio shows जो आपके हैं, वो अलग अलग जगह भेजे जा सकते हैं। ऐसा कुछ इस पे होता है। If somebody, you can tell me in the chat, if there is any student who is having any podcast already there, please बता दीजिएगा, so that I know कि मेरे साथ अभी कोई है जो हम सब लोगों को साथ लेने वाला है। हम वेबसाइट वर्जन की बात कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद ऐप पे भी सीखेंगे। अगर किसी का पहले से शो है तो बताइएगा, फिर वो दूसरा प्रोसेस है उस शो को पूरा का पूरा एंकर पे लाने का। व्हेन यू विल मेक एन अकाउंट, एंड आई आफ्टर दिस थिंग आई शिफ्ट टू लाइव, फिर हम लाइव पे चलेंगे करने के लिए। when you will be doing this particular thing कि अकाउंट बन गया, and you log in by confirming the email, it will be getting a confirmation message, वो भी आएगा आपके पास। तीन चीजें जरूर करिएगा। तीन चीजें क्या होंगी? पहली चीज, अकाउंट का, पॉडकास्ट का नाम सोचिए, हुजूर। अब आप कहेंगे अरे वाह, आपने तो हुजूर बोला तो हमें लग गया है कि हुजूर का पॉडकास्ट बना देते हैं, या आप कहेंगे जम्मू का पॉडकास्ट, या जम्मू वाले लाइव, और एनीथिंग। आपके यहाँ रैपिंग बड़ी अच्छी होती है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में पढ़ते थे, और क्या गजब, मतलब धींगरा रैपर, एंड आई डू रिमेम्बर एक वो राजा समथिंग ऐसा कुछ करके था, एंड दे वो वेरी नाइस इन रैपिंग, मतलब एक अलग एनर्जी है। सो एक नाम सोच लीजिएगा, लर्निंग रैपर, और थिंक ऑफ अ नेम, थिंक ऑफ सम डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, एक एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, अबाउट इट, प्रोफाइल जैसे, और एक इमेज। इमेज कल आपको अतुल ने बताया कैनवा के बारे में। कैनवा एक बड़ी प्यारी सी एप्लीकेशन है, डिजाइन कर सकते हैं लोगोज अपने। तो ये तीन चीजें यहाँ पर पॉडकास्ट सेटिंग में। दूसरी चीज है अकाउंट सेटिंग्स, योर नेम, योर ईमेल, योर वेबसाइट। वेबसाइट तो अब बताइए, वेबसाइट क्या? जब मैं कह रहा हूं कि आपकी वेबसाइट, तो क्यों हमारा आज का कार्यक्रम, today's session is today, and yesterday we learned how to make website or a semi website, मतलब ब्लॉग। आपका ब्लॉग, आपका ईमेल आईडी, और आपका नाम, आपका नाम जो जो आपका नाम है, वो तीनों चीजें उसमें डलेंगी। पॉडकास्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, पॉडकास्ट कवर आर्ट डलेगी। फिर तीसरी चीज, अगर आपको ध्यान हो, anchor.fm/
टीचर पर्व। ये टीचर पर्व जो है उसका यूआरएल है, जैसे फेसबुक पे यूआरएल होता है। बताइए जरा चैट में बताइएगा। आई गेस यू नो दिस थिंग। देयर इज अ थिंग, यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन। अभी लोग सुनेंगे क्या? क्या आप मुझे नहीं सुन रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई सही बात टाली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी बातें अच्छी हैं ना, तो बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि क्योंकि आज अगर मैं सबसे पहला इंसान हूं आपको पॉडकास्टर बनाने के लिए बताने वाला, तो सोचिएगा ना, आपके कहाँ जेएनके में कौन करता होगा अभी? और इस पे इंटरनेट बहुत कम लगता है। ये वीडियो वीडियो का नहीं है प्रॉब्लम इसमें। नाउ दैट इज अ थिंग। और अब हम ये तीन चीजें हैं, यूआरएल सेट करना है, पॉडकास्ट का नाम सोचना है जैसे ब्लॉग का नाम सोचा है, और इस तरह की चीजें आपको करनी है। इसके बाद आप जब अपने उस पे प्रोफाइल पे होंगे तो वो प्रोफाइल ऐसा नजर आएगा। देखिए खूबसूरत है ना? मतलब आपका थोड़ा खुद के बारे में भी बोल देना जो है ना, वो थोड़ा सा होना चाहिए कभी कभी। तो आप देखिएगा, ठीक लग रहा है? नाम, एक डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे अकाउंट होल्डर का नाम, चैनल आर्ट, एंड देयर इज अ यूआरएल आल्सो ऑन द टॉप। आई गेस यू कैन सी दैट। सो लेट मी नो। मेरे ख्याल से आप इसको ठीक से देख भी पा रहे होंगे कि ये ऐसा दिख रहा है। अब क्योंकि सेम नेम स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे, और थोड़े टाइम के बाद गाना पे, इन सब जगह पे चला जाता है, तो नाम बड़ा जरूरी है। दे से व्हाट इज इन अ नेम। नेम में तो भैया हम हैं, नेम में तो मेरे मेरे साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सो यूल बी रीचिंग पीपल व्हेन यू विल वॉक। अगर मैं इस सवाल को एज्यूम करूं कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि लोगों तक कैसे पहुंचे, मैं आप तक कैसे पहुंचा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बड़ा जरूरी है। ये आपकी कम्युनिटी को, ये जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, मैं उसको डांट के कहना चाहूंगा, यार आप लोगों को सीधा डेस्टिनेशन की पड़ी हुई है। मतलब आप लोग ये सोचते हैं कि बस पहुंच जाएं। देखिए, फिर एक बात आती है कि चलने की तमन्ना थी, पहुंचने की नहीं। डूब भी जाऊं तो पार समझना। चलिए, चलते चलते जो काफिला जुड़ता है ना, उसमें वो लोग हैं। लोगों तक पहुंचना तब पॉसिबल है जब आप चीजें डालते जाएंगे, चीजें करते जाएंगे। एक से शेयर करेंगे, वो दूसरे से शेयर करेगा। आज देखिएगा ना, ये पॉडकास्ट अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो क्या शेयर नहीं होगा? आप अपने दोस्तों से नहीं बांटेंगे? आप चंदीप के बारे में, या नवीन गुलिया जी के बारे में, या रघु पांडे जी के बारे में, या मेरे जो मेंटर हैं अनूप सर के बारे में, उनके बारे में क्या नहीं ढूंढ सकते हैं? ऐसे ही बात से बात निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। और पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स की एक लिस्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ है। ये एक इंटरफेस है वेबसाइट का। द एंकर वेबसाइट हैज गॉट दिस। एंकर वेबसाइट पर ये नजर आता है जो आप अभी देख रहे हैं, कि इस वेबसाइट पे रिकॉर्डिंग हो सकती है। पीपल कैन सेंड यू वॉइस मैसेजेस। 59 सेकेंड्स के वॉइस मैसेजेस भेजेंगे। कमेंट यही होता है जी, कमेंट लिखना नहीं है, बस सुनना है। आप सुने मुझे, मैं सुनूं आपको। एंड यू सेंड मी वॉइस मैसेजेस एंड आई यूज दीज वॉइस मैसेजेस इन अनदर पॉडकास्ट। आपके मैसेज मुझे आ गए, मैंने उनको यूज कर लिया। लाइब्रेरी में जैसा गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, और एक एक बॉक्स बॉक्स करके कुछ होता है ना, क्या होता है बताइएगा? ड्रॉप बॉक्स, यस याद आ गया। तो ये भी कुछ ऐसा वैसा ही है। आप जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे या जो अपलोड करेंगे पहले से रिकॉर्ड किया हुआ, जो आपके फोन में है, जो आपके लैपटॉप में है, वो सब लाइब्रेरी में सेव हो जाता है। और जो ये इधर आपको दिख रहा है, जो इस साइड में आप देख रहे हैं ना, ये मेरी मिरर इमेज है, क्योंकि जो ये नीचे आप देख रहे हैं अपलोड एंड ऑडियो, ये एपिसोड बिल्डर है, ये हमारा वर्कशॉप है। ये हमारे किचन का वो स्लैब है जिसके ऊपर आप बहुत सारी चीजें अरेंज करने वाले हैं। ये आपका वर्क स्टेशन है, चाहे आप कंप्यूटर डेवलपर हो, आप एक एथिकल हैकर हो, कुछ भी हो, आपका एक डेस्क चाहिए होता है। मैं भी अपने डेस्क पे बैठा हूँ आज, तो बड़ा कंफर्टेबल लगता है वैसे तो। लेकिन दुनिया चलेगी तो हम निकलेंगे भी। आप एपिसोड बिल्डर में एक वीडियो अपलोड करेंगे तो एंकर उसमें से ऑडियो निकाल लेगा। मतलब क्या हुआ? इफ यू ऑलरेडी हैव अ यूट्यूब चैनल, देन यू कैन अपलोड दैट वीडियो हियर एंड एंकर विल एक्सट्रैक्ट द ऑडियो आउट ऑफ इट। मतलब उसमें से ऑडियो निकाल लेगा वो। इसका मतलब आप समझ गए ना कि वो आसान है काम। तो ऐसा ये अपने आप कर लेता है। दोज फ्रेंड्स हु हैव ऑलरेडी मेड देयर वीडियोस एंड दे फील that the video can be turned into an audio, but they don't want to record it, so they can go to some other application like Format Factory to convert it. I'm saying no need, simply upload the video, it will extract the audio out of it. Background music लगेगा यहाँ पर, कोई कॉपीराइट नहीं है। एंकर गिव्स यू फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ये सब चीजें हम अभी करने वाले हैं। मैं एक पोएम भी सोची है आप लोगों के साथ बांटने के लिए। ये थोड़ा सा एक क्विक एक कर लेते हैं, ताकि आप इधर उधर हो जाएं तो आपको याद रहे, या तो ये या फिर जो लाइव होगा वो। यू विल बी हैविंग वेबसाइट, ऑन वेबसाइट ब्राउजर जो होता है उसको हम वेबसाइट वर्जन बोल देते हैं।
स्टॉप रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग शुरू किया आपने, जहां ये बटन था रिकॉर्ड का, आप क्लिक करते हैं यहाँ पर जहां रिकॉर्ड लिखा है और रिकॉर्डिंग का स्टार्ट आ जाता है, आप स्टार्ट करते हैं उसको, बोलते जाते हैं एंड यू स्टॉप। कुछ बोला, रुक गए, फिर पानी वानी पिया, घूम के आए, इधर उधर देखा, चलो ठीक है, फिर वापस आए, फिर रिकॉर्ड किया। all these pieces that you have recorded, all these pieces I'm repeating, you have recorded will be there in the library। और जब ये लाइब्रेरी में होंगे ना, तो वहां से आप कभी भी इनको अपने एपिसोड्स में डाल सकते हैं। सो ऐसा आप कर पाएंगे इसमें, मतलब यू रिकॉर्ड मल्टीपल सेगमेंट्स, आप 60 मिनट्स के भी कर लीजिए, 180 मिनट का पॉडकास्ट डाल दीजिए पूरा एकदम। लाइब्रेरी से ड्रैग करके आप ड्रॉप करते हैं एपिसोड बिल्डर में। एंड आई नो दिस इज अ वेरी स्मार्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स कि मैं चीजें आपको एक बताऊंगा, आप उसका 1 का 11 जो है वो बहुत आराम से कर लेंगे, बिकॉज यू नो कि नजर आ रहा है तो ड्रैग हो सकता है। वी नो दिस थिंग बाय यूजिंग द स्मार्टफोन्स। ऐसा कुछ हम करते हैं। नाउ दिस इज हियर एपिसोड बिल्डर में, उसमें 3 डॉट्स हैं। एपिसोड बिल्डर में जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो एडिट ऑडियो आता है, डाउनलोड ऑडियो फाइल भी आता है, या एपिसोड से रिमूव करना भी आता है। तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कि चलिए यहां से उठा के चलते हैं, कहीं और यूज करेंगे। एडिट कर सकते हैं। जब आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ शुरू होता है। इसके अंदर वेर एवर यू विल बी पुटिंग योर माउस, मतलब आप जहां माउस को लेके जाएंगे और क्लिक कर देंगे द लेफ्ट माउस, a purple line will appear। मतलब first it is a black line when it is playing, as you can see। एक तो है अभी 2020 के ऊपर ही लगाई है मैंने वो, कि भैया आप जाओ किसी तरह से। आई गॉट एन इमेज, एक बड़े प्यारी सी इमेज आई। ऐसे मैं आप सब लोग ना ऐसे दीवार के पीछे छिपे हुए हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे बड़ी सारी छड़ी लेते हैं, एक बड़े सारे एक स्टिक लेते हैं, और दूर से एक दरवाजे को ऐसे 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 कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं खोलने के लिए, और दरवाजे पे लिखा है 2021। मतलब हम दूर से देख रहे हैं कि भैया पता नहीं तुम्हारे खाते में क्या है हमारे लिए। तो वैसा और वैसा 2020 बोला थे कि दुनिया बदल जाएगी, तो वाकई दुनिया बदल गई है। हम अलग अलग हिस्सों में कट लगा सकते हैं, 4 हिस्से कम से कम कट लगाएंगे आप। तो अब जब सेव करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि इन चारों को अलग अलग हिस्से करने हैं। यू वांट टू सेव देम एज सेपरेट 4 पीसेस, और यू वांट टू लाइक मेक इट वन। तो यूल से कि आई हैव नॉट डिलीटेड एनीथिंग, सो यू कैन सेव देम एज 4 सेपरेट पीसेस। 4 टुकड़े कर दिए, उसको ट्रिम करना बोलते हैं। इफ आई वांट टू डिलीट समथिंग, तो डिलीट का बटन भी आएगा, मैं डिलीट कर दूंगा और सेव कर दूंगा, और उस जो रिकॉर्डिंग है उसमें से वो हिस्सा रिमूव हो जाएगा जो मैंने यहाँ डिलीट कर दिया, और मैं उसको फिर दुनिया को पहुंचा देता हूँ। ऐसा कुछ है। टाइटल, एपिसोड का टाइटल, एपिसोड का डिस्क्रिप्शन। हाँ, अरे ये बताना बड़ा जरूरी है आपको, सीजन नंबर। अब देखिए सीजन मतलब वो जो गाने होते थे बड़े, है ना, सीजन्स। सो नाउ वी नो अ डिफरेंट थिंग, मतलब अब हम सीजन्स की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक एक सर्वे सा था कि भाई कौन सी वेब सीरीज है जो बड़ी पॉपुलर है, तो सीजन्स का इंतजार करते हैं हम लोग। तो ये सीजन कौन सा सीजन है? इट्स हेलो दोस्तों, मेरा नाम विधि पटेल है, या मेरा नाम दीक्षा है, जो मैं कमेंट्स में अभी देख रहा हूँ, या मेरा नाम प्रवीण है। हम बात कर रहे हैं सीजन 1 में, मैं आपको 10 पोइम सुनाऊंगा। तो ऐसा करके हुआ, फिर सीजन 2 आपने स्टोरीज का किया, सीजन 3 एपिसोड नंबर, ऐसी ऐसी चीजें आप करते जाएंगे। ये तो आपके बाएं हाथ का खाल है, मतलब हाल है कि ऐसा कि आप फटाफट उसको कर देंगे। ये कुछ पोइम्स हैं एपिसोड में। आप एपिसोड्स को, बने बनाए एपिसोड्स को फिर से ड्राफ्ट बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। दिस मच यू कैन डू, एंड इट हैज गॉट एप्लीकेशंस फॉर स्मार्टफोन ऑल्सो। मैं फटाफट आपको स्मार्टफोन डेमो भी दिखाता हूँ अभी। The smartphone is smartphone, मतलब the moment I have come to smartphone, I know most of you, there'll be a very less number of people who will be using मोबाइल फोन के अलावा जो लैपटॉप है वो यूज करते होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग तो, जो है, मैं ये हाय जो उनको कर रहा हूँ जिनकी इमोजीज मुझे आ रही हैं। सो देयर इज अ थिंग दैट आप फोन यूज कर रहे हैं ना, तो फोन में क्या होता है, सब होता है जी। चलिए, मैजिक बॉक्स है वो आपके पाम में, वो कलाई के आगे जो ये हाथ में अपना अपने हथेली में रख के चलते हैं ना इसको, ये देखिए, पहले हम बोलते हैं ना वो जान हथेली पे लेके चलना। सर हम लोग तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है वही हमारी पाम में है। you'll install the application and sign up with email। so again, first things first, सीरियस चीजें सीरियस ही रहती हैं। don't continue with the Gmail, we don't know कि क्या रिस्क हो सकता है। ईमेल, पासवर्ड, नेम के साथ साइन अप करिए। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो हुजूर आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, 1 2 3 4। सो द फर्स्ट वन इज द होम पेज।
You click on the tools, you find a recording button, you start recording. So you start recording then, and then when you are recording, you can stop, and the moment you stop, it says, Mr. Praveen, do you want to apply background music? Praveen says yes. Then the library of the background music will open, and I'll be able to apply the music. If it says, Mr. Praveen, today I want to record with 4, 5, 6 friends of yours, and they should be sitting at home, and एक voice call करो, record करते हैं. So what I'll do? I'll click on invite friends rather than clicking on recording, and I'll send a link by WhatsApp, Twitter, Facebook, Messenger, Insta DM, जैसे मन करे वैसे भेजूंगा. और जैसे ही, but they should have the application. मतलब उनके पास एप्लीकेशन तो चाहिए. देखिए, बारिश में इकट्ठे घूमने निकलने हैं तो छाता तो सबके पास होना चाहिए. वो वो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है कि आप ऐप के थ्रू दोस्तों को बुला के एक कोलैबोरेटिव रिकॉर्डिंग करेंगे, और वो एपिसोड आपका फिर बाद में बहुत आराम से आ जाएगा. तो ऐसा कुछ है जी. Recording रोकी, background music लगाया, you select a music and then you click on save. The moment you click on save, you will be able to see whether you are going to save it in the library or straight away to the desk. That is called episode builder. तो ऐसा कुछ आप करते हैं, you give it a name, it goes to the episode builder and then you publish it. But if you want to bring some other audio, अब इसमें क्या इतनी कमाल की बात आती है? You can record today. दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे उन टीचर्स से जो लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन तो रहे लेकिन फिर भी हमसे कांटेक्ट में रहे. आइए उनसे एक एक करके उनकी कुछ बातें सुनते हैं, लॉकडाउन एक्सपीरियंसेस सुनते हैं. चलिए, पहला टीचर आया, दूसरा आया, तीसरा आया. अब आपने किया क्या? ये बात जो मैंने बोली ये तो आपने लाइव रिकॉर्ड कर ली एंकर में. बाकी रिकॉर्डिंग्स अलग अलग 10 लोगों ने, लाइक यू आस्क्ड सोनाली और मीनाक्षी और रुचि, और यू आस्क्ड एनीबडी एंड दे वेंट एंड देन दे रिकॉर्डेड एंड देन दे गेव द ऑडियो टू यू एंड देन यू ब्रॉट देम बाय क्लिकिंग ऑन इंपोर्ट. सब आपके पास हैं फाइल्स, एक एक करके उन फाइल्स को लगा दिया और शो बन गया. ऐसा इसमें हो जाता है. ये कुछ और हैं, साउंड इफेक्ट्स हैं बीच में. आज की कहानी हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, आज की कहानी. और फिर एकदम से छोटा सा म्यूजिक आता है, मिस्ट्री वाला म्यूजिक, एंड देन ऐसा कुछ इसमें होता है. और ये फिर बाद में घूम फिर के बात वही है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये बातें आपको देनी पड़ती हैं इसमें. एंड एंकर में इनबिल्ट ऑडियो जो एडिटर है वो है, और वो ट्रिम करता है. देखिए, आई एम नॉट गारंटिंग कि आप ये कहें कि एको लगाना है. उसके लिए एक ऑडेसिटी नाम का सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप पे यूज होता है. कुछ एप्लीकेशंस हैं स्मार्टफोन के लिए भी ऑडियो एडिटिंग की, वो यूज कर लीजिएगा. बट एंकर अब देखिए इतना नहीं करेगा, मतलब हम लोग ये सोच सकते हैं उसको. ऐसा कुछ होता है जी. और आप सभी लोगों को मैं एक खास बात जो बताना चाहूंगा कि चलिए पॉडकास्ट बनाते हैं, और आप लोग anchor.fm/teacher parv, TEACHER PARV. इन हिंदी द पर्व वर्ड मीन्स सेलिब्रेशन. वैसे मेरे नेम के इनिशियल 4 लेटर्स भी हैं, निकनेम जैसा भी बन जाता है. और टेक्नोलॉजी चेंजेस द वे वी यूज इट. जैसे चीजें खोती नहीं है ना, कभी हम उनकी जगह भूल जाते हैं. अब साइंस ने हमें चाकू किस लिए दिया था? वो अंग्रेजी का 8 बनाने के लिए तो नहीं दिया था ना, हमारे अपने इंसानों के को मारने के लिए तो नहीं दिया था. चाकू तो सेब काटने को दिया होगा ना. अब गलत यूज तो शायद हम लोगों ने किया. तो इसलिए टेक्नोलॉजी चेंजेस द वे वी यूज इट. प्रॉब्लम किसी भी चीज से नहीं है. बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है. आप भी मानिएगा कि हम लोगों को आपसे कोई शिकायत नहीं है. बस हम ये चाहते हैं कि आप जो चीज यूज करें उसको अपने अच्छे के लिए यूज करें. इसमें एक बड़ी जरूरी बात है कि क्या बात कहेंगे मैं आपको, अभी किसी ने वॉडकास्ट वर्ड भी लिखा है, तो हम वॉडकास्ट कर रहे हैं अभी. यू कैन अफोर्ड टू कीप योर आईज ऑन द वॉइस, दैट डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर. कुछ ऐसा करिए ना आज कि आने वाला जो आपका अपना सेल्फ है वो आपको कहे कि प्रवीण शुक्रिया, तुमने गए वक्त में मेरे लिए कुछ किया, तो आज मैं थोड़ा ठीक ठाक तरीके से 4 लोगों को कुछ बातें सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ. तो ये हमारी कहानी है. मैं लिंक्डइन पे, ट्विटर पे भी हूँ, और मैं भी ब्लॉगर हूँ. अतुल भी ब्लॉगर है. ये सब मेरे, मैं ये कहूंगा कि डेविल्स हैं, एक तरह के एथिकल डेविल्स हैं. मतलब हम वर्ड्स का नेगेटिव मीनिंग किल कर सकते हैं, पता है आपको. हम चाहें तो हर वर्ड में कोई नेगेटिविटी जो आ गई है उसको मिलके उसको मार सकते हैं. मैं अगर डेविल कहता हूं तो देखिए आपको बुरा नहीं लगेगा. जैसे आपके फैमिली में माँ बाप, दोस्त आपको कोस देते हैं ना, मर परा जाके, तो वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप मरे परा जाके. मतलब वो प्यार होता है, वो एक तसल्ली होती है. तो उसी तरह से चीजों को अच्छे से करने से चीजें अच्छी हो जाती हैं. तो ये ट्विटर, एक पॉडबीन पे पॉडकास्ट है,
यूनिस्किल्स इंडिया नाम से यूट्यूब चैनल है, गूगल पे, एंकर पे, स्पॉटिफाई पे, तो अभी मैं आपको लेके ही जा रहा हूँ। ऐसा कुछ होता है। और इसके साथ में स्टॉप शेयरिंग, इसकी तो हम कर रहे हैं अभी, बट आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रिंग द वेबसाइट नाउ। जो एंकर की वेबसाइट है, मैं उस पे जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको छोटा मोटा ऐप के बारे में कुछ बता दूंगा। ऐसा कुछ है। अभी आई एम जस्ट थिंकिंग कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो वैसे ऐसे भी आए हैं, देखिए मैं ये आई एम नॉट गोइंग टू फील रिलक्टेंट अबाउट टॉकिंग टू यू। समबडी इज आल्सो सेइंग कि हो क्या रहा है। आई विल से कि हम लोग सीख रहे हैं मिलके, और इंसान के साथ उसकी एक फितरत जो है वो बहुत अच्छी चलती है कि वो जितना भी देखे ना उतना सीख जाता है। तो हम लोग वैसे सा ही कुछ करेंगे। अब मैं एंकर की वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। मैं एक बार के लिए उस अकाउंट से लॉग इन कर लूं जिस अकाउंट से मुझे आपको डेमो देना है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। TEACHERPARV, ये मेरा अकाउंट है। और अब मैं इसमें पासवर्ड भी डाल रहा हूं। हाँ जी, अब हम वापस आते हैं अपने सेशन में और शेयर स्क्रीन करके, एंड आई विल बी शेयरिंग द motion and video and audio also. So here I am. Do let me know when you are able to see the screen. Right now you can see this is the same channel, that is anchor.fm teacher Parv. अब एक reminder है, this is what I was talking about, update settings. Without okay, just a second. I just reminded of something. अब क्योंकि मुझे आपको कुछ और भी बताना है, तो लीजिए, I'm just changing my microphone and I'm bringing you to something quite different. Let me know. मैं settings में जाता हूँ and I'm just doing this. I'm getting you to a different microphone now. Yes, I guess अब आप शायद आवाज़ को थोड़ा बदला हुआ भी महसूस करेंगे। And I'm sharing the screen. I'm using a podcasting mic now. एक वो बड़ा सारा माइक होता है ना जो स्टूडियो टाइप होता है, वैसा वाला मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको वो दिखाऊंगा भी। वो ऐसा सा कुछ है, ये वाला है जी। आप ये देखेंगे, ये एक बड़ा सारा माइक है। अब ये मेरा साथी है, आप तक मेरी आवाज़ जो है वो इन साहब के ज़रिए पहुँचेगी। तो शुरू करते हैं जी। अब हम पॉडकास्ट्स बनाना। सो हियर वी आर। आई वाज ऑफ द व्यू कि अगर आपको तब आवाज़ अच्छी लग रही थी, तो अब तो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो और अच्छी आवाज़ आएगी। दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ अ हैवी, मतलब बेस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, भारीपन, उसकी आवाज़ आती है। चलिए, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं and we are talking about something which is related primarily to Google। जो हम बात कर रहे हैं अभी इसमें कि हम अपने गूगल क्रोम में जाते हैं या कहीं पे भी आप मतलब अगर जाते हैं तो आप लोगों को उसमें चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा कुछ होता है जी। अब हम पहुंच रहे हैं अपने अकाउंट में एंड दिस इज द अकाउंट। हियर आई वाज टॉकिंग अबाउट अपडेट सेटिंग्स। बिना ब्लॉग का नाम सोचे ब्लॉग कैसे बनाएंगे? पॉडकास्ट का नाम, पॉडकास्ट के बारे में, इमेज जो आपका लोगो हो, कैटेगरी ऑफ द पॉडकास्ट। मेरा तो एजुकेशन है जी, हम तो इससे बाहर नहीं जा सकते। अब मैं स्टैंड अप तो नहीं कर सकता हूँ, दो आई कैन, लाइक आई हैव ऑफन फेल्ट कि बड़ा मजा आता है पब्लिक स्पीकिंग में। तो स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं हम लोग सिंगिंग भी करते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं। टीचर्स आर तो यू नो वी हैव फ्रीडम। मतलब मैं जोक्स भी करेक्ट करूंगा, मैं जो मन करेगा क्लास में उस तरह से बात करूंगा, तो हम सब कर लेते हैं। तो एजुकेशन में डाला उसको। मैंने अपना लैंग्वेज इंग्लिश किया है, आप इसको हिंदी भी कर सकते हैं, ढूंढ लीजिएगा लैंग्वेजेस भी। ये इस तरह से चीजें चलती हैं जी। नाउ वी आर गोइंग टू लाइक मूव बैक टू मेक एन एपिसोड। ये डैशबोर्ड है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप यहां पहुंचेंगे। नाउ I'll simply do this thing. I'll click on new episodes। मतलब मैं ये न्यू एपिसोड कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से आप इसको देख भी पा रहे हैं। अब न्यू एपिसोड में मैं आपको ना, अब मैं आपको रिकॉर्ड करके एक एपिसोड बना के आप तक पहुंचाता हूँ चैट के थ्रू, और वो मैं अभी चाहूंगा कि आप उसको सुने भी।
और लगभग वैसा सा ही प्रोसेस जो है वो वहाँ शुरू हो जाता है। ये रिकॉर्ड का बटन, आई प्रेस्ड रिकॉर्डिंग, the recording will open. I should ensure that the microphone I have selected is being selected by me here also. So I have selected default microphone USB condenser microphone जो जो प्रोफेशनल स्टूडियोज में यूज़ करते हैं, जैसे नीलेश जी यूज़ करते हैं या और जो लोग यूज़ करते हैं। ये उतना कॉस्टली या उतना बड़ा माइक नहीं है, बट स्टिल इट्स फ्रॉम दैट कैटेगरी। आई कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर एंड देन आई कैन रिकॉर्ड। तो मैं जो सुनाऊंगा आपको वो एक बड़ी खूबसूरत एक पोएम है जो मैंने रखी है। वो मेरे सर हैं जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं बट हिंदी के पोइट हैं। उनका ब्लॉग है बर्फ के खिलाफ, BURFKEKHILAF खिलाफ.com blogspot.com। यस, तो बर्फ के खिलाफ दिनेश दधीची हैं, डॉक्टर दिनेश दधीची हैं। तो वो पोएम्स लिखते हैं। ये पोएम मैंने उनसे सुनी थी, उनसे बेहतर मैं नहीं कर सकता हूँ, ना इस जन्म ना कभी आने वाले में, अगर कभी ऐसा मौका मिलता है। बट फिर भी मेरा ये मन है कि मैं इस पोएम को आपको सुनाऊं। ये रिकॉर्ड करते हैं और ये पॉडकास्ट मैं आप तक पहुंचाता हूं और आप इसको सुनेंगे। ये हम लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नो एडिटिंग, नथिंग। तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। जो कविता है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कांच के गिलास। तो ये बड़ी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये भी दोस्तों को लेके है, या आपको मुझे लेके है, मेरी आपकी ज़िंदगी को लेके है। तो आइए, रेडी हैं आप लोग? चलिए, एक नया पॉडकास्ट, टीचर पर्व पॉडकास्ट का एपिसोड आप लोगों के साथ लाइव करते हुए। यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगर मैं करता हूँ तो साथ में मैं उस पोएम को अपने साथ ले लेता हूँ कि मैं उसको आराम से पढ़ भी सकूँ। हाँ जी जी, मेरे ख्याल से आपकी इजाज़त है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ अर्ज़ किया है, तो सुनते हैं जी। हेलो एंड वेलकम, आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, अभिनंदन है टीचर पर्व पॉडकास्ट में। आज हम कोई ख़ास बात नहीं करेंगे, हाँ, मगर हम लोग दोस्तों की बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, दोस्तों के बारे में बात करेंगे और उन दोस्तों को याद करने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम भूले नहीं हैं, खोए जाने का डर नहीं है उन दोस्तों को हमें। कांच के गिलास, ये कविता, ये कुछ बातें मैंने अपने गुरु, मेरे मेंटर, टीचर डॉक्टर दिनेश दधीची से सुनी और आज मैं ये आप लोगों से बांट रहा हूँ। उनसे ये कविता मंगवाने के बाद कि सर मुझे भेजिए, मैं सुनाना चाहता हूँ। ये उनके पास कहीं से आई थी, हमें ये तो पता नहीं कि ये किसने लिखी है, पर ये पता है कि बात हमारे मन की है। क्या बात है? कांच के गिलास। हम कोई कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरें और एकदम टूट जाएं। आखिर हम दोस्त हैं मेरे यार। हम कोई कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरें और एकदम टूट जाएं। आखिर हम दोस्त हैं मेरे यार। पहले हम एक दूसरे की नजरों से गिरेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएंगे। मुझे मालूम है कि ऐसे टूटने में तकलीफ तो होगी, लेकिन हम कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरें और एकदम टूट जाएं। तुम भी जानते हो और मैं भी कि कितना मुश्किल होता है बंद दरवाजे की ओर बार बार जाना, आती जाती सांस के रास्ते में दीवार खड़ी करना और चौराहे पर खड़े रहना किसी एक की प्रतीक्षा में। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा करेंगे, तुम कहीं और, मैं कहीं और चला जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा कि मैं यहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ और आपकी कुशलता श्री भगवान जी से शुभ चाहता हूँ। और उस पत्र के उत्तर में तनिक देरी के लिए तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे और मैं तुम्हारी शादी की सालगिरह पर कोई छोटा मोटा गिफ्ट भेजूंगा और तुम पिताजी के अचानक गुजर जाने के गम में मुझसे हमदर्दी जतलाओगे और मैं तुम्हें ईद मुबारक कहूँगा और तुम मुझे दिवाली की शुभकामनाएं भेजोगे। और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 31 दिसंबर की वो ठंडी शाम आ जाएगी जब हमारे ग्रीटिंग कार्ड्स किसी डाकघर में अचानक एक दूसरे से टकरा जाएंगे और टूट जाएंगे। मुझे मालूम है कि ऐसे टूटने में तकलीफ तो होगी, लेकिन हम कोई कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरें और एकदम टूट जाएंगे। आखिर हम दोस्त हैं मेरे यार। डन। बहुत खूबसूरत लिखा है। जिसने भी लिखा है, मैं ये कहूँगा कि हम इंसानों की इस कौम पे मन की बात कह के बड़ा एहसान कर दिया है। तो चलिए, ये पोएम अब प्रोसेस हो रही है, आप देख रहे होंगे। अब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है, मैंने स्टॉप किया। तो दिसंबर 28, 2020 12:09 PM पर एक बहुत खूबसूरत पोएम जो है वो सेव हो गई है। अब मैं इस पोएम को रीनेम करूंगा
and how I'm going to rename it, I'm going to click on a small pencil, एक छोटी सी पेंसिल है, उस पे मैं क्लिक करता हूँ और उस पे मैं नाम लिखता हूँ उसका, और अब मैं हिंदी टाइप लैपटॉप पे कर देता हूँ, तो मैं उसको कांच के गिलास मेरे दोस्त, ऐसा कर देते हैं इसको, मेरे दोस्त कविता, ये इसके बाद एंटर, एंड देन दिस इज द नेम चेंज्ड. नाउ आई वांट टू ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक टू इट. हाउ प्रवीण इज गोइंग टू ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक टू इट? नाउ so I click on the music icon, add background music. I can do this thing in mobile phone also. अब मैं म्यूजिक सुनाता हूँ आपको, मुझे बताइएगा सुनता है क्या, कौन सी कैटेगरी पसंद करेंगे जी इस कविता के साथ, विद दीज वर्ड्स, इन लफ्जों में, काम, चीयरफुल, क्यूरियस, ड्रामेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, कैसा वाला म्यूजिक चलना है? दुख वाला चलाना है क्या, मेलंकली चलाना है? देखें क्या आपको आवाज आ रही है? अभी देखते हैं, प्ले हुआ तो क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे बताइएगा. कोई डिग्री पॉडकास्ट की या डिप्लोमा जो है, हेलो एंड वेलकम, आप सभी का खैर मकदम है. अगर आवाज आप तक जा रही है तो मुझे बताइएगा, फिर नहीं तो फिर मैं इसको पोस्ट करता हूँ. आई गेस यू आर एबल टू सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. आई एम गोइंग टू अप्लाई म्यूजिक एंड देन इट विल बी गोइंग देयर. तो ऐसा कुछ कर लेते हैं हम लोग. हाँ जी, अभी करते हैं इसको फिर से वापस. आई विल शेयर द ऑडियो सेटिंग्स के साथ में इसको शेयर करता हूँ, so that I can send the audio of it. मुझे क्योंकि स्पीकर्स की मुझे सेटिंग्स बदलनी पड़ती है अक्सर, तो मुझे लग रहा है कि मैं वो ना करूं, और मैं आप लोगों के साथ जो हम लोगों का ऑडियो कनेक्शन है, स्विच ऑडियो, एंड नो, आई विल जस्ट कीप इट. आई एम अप्लाइंग अ टोन. मैं एक छोटा सा एक म्यूजिक लगा रहा हूँ अपनी तरफ से, और वो म्यूजिक आप सुनिएगा, और फिर उसके बाद में ये मैंने अप्लाई कर दिया, बिकॉज आई नो कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है, और ये शो आप सुन पाएंगे बस अभी अप्लाई करने के बाद. इट इज गेटिंग अप्लाइड माय डियर फ्रेंड्स. यू कैन सी ओरिजिनल फाइल एंड द म्यूजिक बेस्ड फाइल दोनों इसमें नजर आ रही हैं. ये देखिए, ये पहले वाली फाइल है और उसके ऊपर दूसरी फाइल है जिसको आप प्रोसेसिंग होते हुए देख रहे हैं. So that is happening. A short icon has also appeared on the left hand side यहाँ पर, music. What I'll do, I can click on this plus or I can drag it. ये लो जी, उठा के डालने का रिवाज भी है आजकल, तो हम जब फोन यूज करते हैं that we drag it like that. But I'll do, मैं क्लिक कर देता हूँ and it jumps here. ये देखिए, अब देखिए, मैं चाहूँ ना अगर तो इसको यहाँ क्लिक करके एडिट भी कर सकता हूँ. I can click on edit and I'll do this. ये देखिएगा आप, मैं इसको एडिट कर पाऊंगा अभी. ये लोडिंग में ओपन हो गया है एंड यू कैन सी दिस इज, मैं यहाँ मार्क करता हूँ, नीचे स्प्लिट है. आई कैन क्लिक ऑन स्प्लिट एंड आई कैन क्लिक हियर, देन स्प्लिट. आई कैन डिलीट अ पर्टिकुलर पोर्शन, बट ये तो देखिए बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे हम इसको तो, एंड दैट पोर्शन विल बी डिलीटेड. एंड देन आई कैन क्लिक ऑन सेव एंड इट विल से मल्टीपल सेगमेंट्स और न्यू सेगमेंट. मल्टीपल सेगमेंट का मतलब है इसके टुकड़े होके आ जाएंगे आपके पास एपिसोड बिल्डर में. आप चाहें तो उनमें से कोई टुकड़ा डिलीट कर सकते हैं, बट डोंट वरी, लाइब्रेरी में अपना सब कुछ यूं के यूं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. मैं कैंसिल कर रहा हूं इसको फिलहाल. डिस्कार्ड माई चेंजेस, सेव द एपिसोड, और वहां पे मैं आपको ये पोएम आपके पास पहुंचा के थोड़ा सा आराम लूंगा. फिर कांच के गिलास, गिलास, GILAS, दैट वे, गिलास कविता. नए साल पर मेरे दोस्तों के लिए. अब ये नहीं है कि मैं उनको कोई ताना दे रहा हूं, या ये देखिए डिस्क्रिप्शन भी डाल रहा हूं. मैंने टाइटल डाला, आई हैव प्लेस्ड डिस्क्रिप्शन, आई कैन पब्लिश इट नाउ. सीजन नंबर डालेंगे हम अपना 1. ये 1 है सीजन नंबर. मैं अभी सेकंड सीजन नहीं शुरू किया है इसका. एपिसोड नंबर 45 मैंने कल देखा था, या 44. मैं 45 एपिसोड डाल रहा हूँ बिकॉज इट इज 45 नंबर एपिसोड. एंड देन आई गो टू द टॉप एंड विल से पब्लिश. और इसके बाद मैं यूट्यूब में आपको इसका जो लिंक है, ये देखिए पब्लिश हो गया. मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं यूट्यूब में जाता हूँ, और आपको प्लीज सी दिस करके
और मैं वो लिंक आपके पास में पहुंचा देता हूँ जी। हाँ जी, ये लीजिए this and this. I guess you are able to see the link as well. So इस लिंक को अब आप देख सकते हैं। ये लाइव स्ट्रीम से आपके पास आ गया है। हाँ जी, मैं भी इसको सुन लेता हूँ, ये भी अच्छा लगेगा। और मैं इसको अपने एन एंकर डजंट फोर्स यू टू हैव एन अकाउंट ऑन एंकर, आप इसके बिना भी इसको सुन सकते हैं। तो लीजिए अब एंकर पे इस पॉडकास्ट को सुनने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट 44 सेकंड का सुनिए और मैं आपको फोन से सुना रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम, आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, अभिनंदन है टीचर पर्व पॉडकास्ट में। आज हम कोई खास बात नहीं करेंगे, हाँ, मगर हम लोग दोस्तों की बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, दोस्तों के बारे में बात करेंगे और उन दोस्तों को याद करने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम भूले नहीं हैं, खोए जाने का डर नहीं है उन दोस्तों को हमें। कांच के गिलास, ये कविता, ये कुछ बातें हैं मैंने आपको दिखा रहा हूँ सेशन में। मेरे मेंटर टीचर डॉक्टर दिनेश दधीची से सुनी और आज मैं ये आप लोगों से बांट रहा हूँ। उनसे कविता मंगवाने के बाद की सब्जी। हाँ जी, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो इसका पॉडकास्ट है, तो इसको लगा कि पापा अपना पॉडकास्ट दिखा रहे हैं तो मेरा पॉडकास्ट भी बताया जाए। तो ये कितनी एज है आपकी? 6 years. 6 years हैं, 6 years and 6 months यू कैन कॉल। तो ये भी पॉडकास्ट करते हैं, तो मेरे सीनियर्स भी पॉडकास्ट करते हैं, ये बच्चे भी पॉडकास्ट करते हैं, तो सब पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने सुना होगा। सुनाना चाहता हूँ, ये उनके पास कहीं से आई थी, हमें ये तो पता नहीं कि ये किसने लिखा और चौराहे पर खड़े रहना। चलिए, और मेरे ख्याल से आप इसको सुन रहे होंगे, तो मैं देख भी सकता हूँ कि कितने लोगों ने इसको सुना। तुरंत नहीं आते हैं एनालिटिक्स, बट स्टिल दे कम इन सम मोमेंट्स, थोड़ी देर में वो आ ही जाते हैं। और ये एकलव्य का जो पॉडकास्ट है, मैं उसका लिंक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, EKLAV। आप इसको भी कभी सुन सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग एन एक्सेप्शन माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी नहीं। ये मत सोचिएगा कि मैं और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तो और दुनिया नहीं कर रही है। बहुत दुनिया बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमारी जो इंटेंशन है, हमारा जो पर्पस है आज बात करने का, वो ये है कि हम लोग भी अपना जो कुछ कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंस है वर्ल्ड में हमारी, हम उसमें कुछ कर सकें। हाँ जी, अब मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देखना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक उसको देखा भी है तो आप लोग उस पर सुन रहे होंगे। हाँ जी, ओके, वेलकम, डन 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 डन, वेरी नाइस इज फाइन, बट यू आर एबल टू। ये और ये पोएम सुनाइएगा उन बड़ों को जो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। आई यूज्ड टू गिव अ होमवर्क टू माय स्टूडेंट्स, जब स्कूल्स में भी पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज में भी, that you have the task of making your parents talk to their old friends। मतलब आपको उनको, आपका असाइनमेंट क्या है कि आप फोन मिला के उनके किसी पुराने दोस्त को फोन करके उनसे नमस्ते करके उनका हालचाल पूछ के उनकी खैरियत जान के आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे, लो अपने दोस्त से बात करो। आप टीवी देख रहे हो ना, थोड़ी देर मत देखो, उनसे बात कर लो। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हम लोग आखिर इंसान हैं मेरे दोस्त, तो हम लोगों का जुड़ के रहना, हम लोगों का इन्हीं छोटी छोटी बातों में बिजी रहना वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये मशवरा है कि मशगूल रहें अच्छी चीज़ों में, लोगों का ध्यान रखें, वो सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है जी, सो दैट इट इज़। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़, मैं जो ये हमने पॉडकास्ट एपिसोड देखा है ये भी 0 पे है। चलिए कोई बात नहीं, 0 पे है, थोड़ी देर में आ जाएगा ये भी। मैं अब आपके साथ में जो चीज़ें बांटने वाला हूँ वो क्या है। एपिसोड डन, नाउ विल गो टू द मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। मैं मोबाइल फ़ोन में भी एक एपिसोड जो है वो आपके साथ करूँगा और उससे फिर हमारा काम पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद में देखिए कुछ नहीं होगा, फिर देन वी आर फ्री टू लाइक वर्क ऑन समथिंग। फिर मैं आप लोगों को एज असाइनमेंट छोड़ सकता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है, I can click here and I can simply like view episode details and revert to draft। तो उसको मैं ड्राफ्ट में भी तब्दील कर सकता हूँ फिर से, उसमें मुश्किल नहीं होगी। क्या काम किया हमने, न्यू एपिसोड, रिकॉर्ड,
लाइब्रेरी में देखिएगा, पहले से किए एपिसोड रखे हैं। यू कैन क्लिक हियर एंड अपलोड समथिंग जो ऑलरेडी आपके पास रखा होगा। जैसे ये देखिए मेरे सिस्टम में, अगर मैं ये सोचूं, ये अगर हम लोग ये जाते हैं, ये तस्वीरों का फोल्डर है, ये डेस्कटॉप है। ये लीजिए, डेस्कटॉप पे मैं ढूंढता हूँ कोई ऑडियो। ये देखिए दिनेश सर की पोएम कांच के गिलास, ये उनकी आवाज में पोएम जो है वो यहाँ है। अब मैं चाहूँ तो एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ और वो वीडियो ऑडियो बन जाएगा। ये एक वीडियो है। मैं एक बात याद आई मुझे, हम ना एक ये फिर वही बात आ रही है कि आप, ये सीखने की बात है। एक हरिओम परिव्राजक जी हैं, कुरुक्षेत्र में गुरु हैं, एक साधु संत हैं। उन्होंने एक बात कही, बोले हम ना ईश्वर को मानते हैं, हमें ईश्वर की माननी चाहिए। मतलब मैं भगवान को मानता हूँ, देखिए किसी को भी मानता हूँ मैं, ईश्वर, अल्लाह, सच्चे पातशाह को मैं उनको मानता हूँ। मुझे उनको मानने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी बातें माननी जरूरी है। तो जो उन्होंने कहा है मैं वो मानूं। और सारे जितने भी हम लोग हैं, किसी भी कम्युनिटी से हैं, रिलीजन से हैं, सोसाइटी से हैं, कहीं से भी हैं, हम लोगों की जो परवरिश है, जो रिचुअल्स हैं, जो फोक कल्चर है, वो हमें मेहनत करना और नई चीज़ें सीखना और दूसरों से बांटना ही सिखाता है। तो यही हमने किया। ये लाइब्रेरी है, इसमें सब कुछ पुराना रखा है, चाहे वो एपिसोड में गया चाहे नहीं गया। बैकग्राउंड म्यूजिक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये हम लोगों का ठीक है जी। आप लोगों की बहुत बहुत मैं ये कहूँ कि ऊपर वाला आपको बरकत दे कि अगर आप लोग इसको सुन पाए हैं और आपको अच्छा भी लगा है। ये साहब का कोई पॉडकास्ट अगर मैं आपके लिए प्ले करूँगा, आई एम नॉट श्योर कि ऑडियो भी जाएगा कि नहीं। जैसे ये बड़ी सुंदर पॉडकास्ट है एक। क्या इसकी आवाज़ आपको आ रही है? 5 कविताएं, क्योंकि मेरे पास से थोड़ी आवाज़ मिसिंग है। मैं उसका कोई रीज़न हो सकता है, बताइएगा। पॉडबीन भी एक एप्लीकेशन है दोस्तों, बट हम लोग पॉडबीन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एंकर कर रहे हैं। इसी तरह से हब हॉपर एक एप्लीकेशन है, वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जी। हाँ, आप लोग जब एंकर पे अकाउंट बना लेंगे, मुझे वॉइस मैसेज भेजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा उसका। मतलब मैं चाहूँगा कि मुझे आप लोगों के वॉइस मैसेजेस आएँ। और ये जैसे, अरे वाह, ये कुछ मैसेजेस तो आए हुए हैं जी हमारे पास। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके लाइव स्ट्रीम में एक लिंक पेस्ट कर रहा हूं फॉर वॉइस मैसेजेस। ये लीजिए। और देखिए अब ये है ना कितनी खास बात, लाइव स्ट्रीम यहाँ से मैनेज हो रही है यूट्यूब की। सिस्को में हम लोग मीट कर रहे हैं और मैं मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट है मेरे टीचर्स को जाता है, मुझे सिखाने वालों को जाता है, मेरे स्टूडेंट्स को जाता है जिन्होंने मुझे टीचर बनाया। मतलब कि अब आप डिमांड करेंगे तो ही 2 कदम आगे होना पड़ेगा ना, तो टेक्नोलॉजी में। तो ये हम लोगों ने पॉडकास्टिंग की अभी। इसके बाद अब मैं अपने फ़ोन को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ, सेम राउटर से कनेक्ट करूँगा। और उससे कनेक्ट करने के बाद में मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को कास्ट करूँगा। और कास्ट करने के बाद में मैं आपको दिखा पाऊँगा कि देखिए फ़ोन में क्या हो रहा है। ये लीजिएगा, क्या आप इसको देख पाएंगे अभी? मैं जस्ट अभी चेक करता हूँ कि मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ स्क्रीन एक बार, और फिर उसके बाद में मैं आपको वही स्क्रीन दिखाऊंगा जो हम लोगों की प्राइमरी स्क्रीन है। हाँ जी, I'll just go to the mobile phone and here it is. Let me know if you are able to see. यहाँ देखिए, मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये देखिए। और मैंने भी आप लोगों की तरह एक मॉड सा आयरन मैन टाइप कवर लिया है। ये स्टाइलस है, ये बाजार से खरीदे हुए स्टाइलस हैं। मतलब मैं उंगली की जगह चाहूँ तो ये पेन यूज़ कर सकता हूँ। और कल मैंने आपसे जो वीडियो शेयर किया था, जो यूनिस्किल्स इंडिया के चैनल पे है, वो जो है वो जो आप उसको घर पे बना सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट पे चलते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे ज़रूर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। आई विल सिंपली जस्ट गो टू यूट्यूब टू फाइंड आउट कि वहाँ क्या चल रहा है। ये देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं दैट वी ऑल आर टुगेदर। ओके, विल गो टू लाइव। यस, वी हैव रीच्ड द मोबाइल फोन। सो हियर वी आर माय फ्रेंड्स। ये हम पॉडकास्ट पे गए, ये एंकर एप्लीकेशन पे गए। दिस इज डन। ये लीजिए, ये एपिसोड 2 बना हुआ है, लेटेस्ट एपिसोड है। हम लोग अब रिकॉर्डिंग के टूल पे दबाते हैं। आई प्रेस्ड ऑन टूल, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन रिकॉर्ड एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। ये रिकॉर्ड शुरू हो गया है। देखिए रिकॉर्डिंग चलती जा रही है, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं, मैं समझता जा रहा हूँ, आप समझाते जा रहे हैं। और इस तरह से हमारी बातों में से बातें निकल के बात बनती जा रही है।
और हम अपने शोज़ को इस तरह से यहाँ डालने के बाद इसको रोक देते हैं और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक का बटन आता है। यहाँ से बैकग्राउंड म्यूज़िक सिलेक्ट करते हैं, उसको सुन के देखते हैं, आपको वो अच्छा लगता है एंड यू क्लिक ऑन दैट प्लस, वो बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई हो जाता है। यू क्लिक ऑन सेव, यू गिव इट अ नेम, एपिसोड का नाम देते हैं। यू वांट टू सेव इट टू द लाइब्रेरी फॉर यूजिंग लेटर और यू वांट टू यूज इट राइट नाउ, तो यहाँ सेटिंग बटन पे क्लिक करते हैं। यू कैन सेव इट टू लाइब्रेरी और न्यू एपिसोड, यू से एपिसोड ही डाल देते हैं। लाइब्रेरी में तो जाएगा ही जाएगा, नेम दिया, एड रिकॉर्डिंग टू एपिसोड, सिंपली एपिसोड बिल्डर, आपका वर्क स्टेशन का जो डेस्क था, जो स्लैब था, वो आ गया। इसके बाद में ये यहाँ प्रोसेस होके आ जाता है। आप पब्लिश पे क्लिक करते हो, उसको नाम देते हो, डिस्क्रिप्शन देते हो, यू गिव इट सीजन नंबर, एपिसोड नंबर, मन करे तो दीजिए, और चाहो तो शेड्यूल कर दो कि अभी नहीं 29th को, एडवांस में भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये ऐसा आप करते हैं। तो इसको अभी मैं चाहूंगा कि हम लोग ये ना करें, एक असली वाला पॉडकास्ट और आपके साथ में डाल देते हैं। कविताएं और बातें तो देखिए बहुत सारी हैं अपने पास करने के लिए, तो मैं इसको यहाँ से एपिसोड से उड़ाऊंगा और एक नई रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। ये एक बार इसको प्रोसेस कर दें हम लोग। ये पब्लिश नहीं करना है एपिसोड, तो ऊपर जाते हैं और डिलीट कर देते हैं और एक अच्छी रिकॉर्डिंग अभी करते हैं। इसमें मैं सुन के देखता हूँ और रिकॉर्डिंग करता हूँ जी। ये लीजिएगा, ये टूल्स, और इसके बाद में अगर मैं देखिए टूल्स पे जाके रिकॉर्ड के बटन पे दबा रहा हूं तो ये इनवाइट फ्रेंड्स टू ज्वाइन है। इफ आई क्लिक ऑन इनवाइट फ्रेंड्स टू ज्वाइन एंड आई कॉपी द लिंक, मतलब मैं अब लिंक जो आ रहा है, इफ आई कॉपी दिस लिंक एंड आई गिव दिस लिंक टू समबडी, तो वो मेरे साथ, ये आवाज आ रही है इसमें, वो मेरे साथ यहाँ रिकॉर्डिंग में जुड़ जाएगा। जैसा आप जरूर करके देखिएगा, बट अभी नहीं करेंगे ऐसा, अभी इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड लेट्स रिकॉर्ड एक और छोटी सी बात कोई रिकॉर्ड करके देखते हैं जी। हाँ जी, हम अब फिर से कास्टिंग पे आते हैं, टर्न ऑन एंड देन ट्राइंग टू कनेक्ट। Yes, so we are coming back and I'll just record a small message for the students of GCW Parade Ground Jammu and फिर उसको मैं पोस्ट कर देता हूँ आपके पास। Hello and welcome to Teacher Parv podcast. Today when you are listening to this podcast, this is being made for those learners, those lifelong learners and fantastic, great, बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए ये पॉडकास्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। दिस इज फॉर द GCW Parade Ground Jammu and everyone who is attending this session. There are two things that I should be talking about when it is about student life. दो खास बातें हैं। There is one thing that you should understand. You cannot predict your career. Means you don't know what is going to happen to your career, but at least you can plan, you can prepare. Means your career is unpredictable. Your preparations should not be unpredictable. आप अपनी तैयारी अच्छी रखेंगे। और एक और खास बात है that I learned from Sam Manikshaw's lecture. He says that a good leader should have these two attributes. One is professional knowledge and the second is professional competence. Having good marks, knowing the concept completely, being able to like write well in the examinations doesn't mean that you are going to succeed in the future world. The world in which you are going to exit into after your degree will be a different world, my dear friends. Degrees will matter only to tell you that you have a degree. Companies, employers, or everyone is going to ask for the competence, means the power, the capability, the skills. So along with professional knowledge, focus on your professional competence as well. Prepare yourself for the world in which you are going to exit into, not the world which is here at present, because we teachers are trying to take care of the current world, but we wish that you prepare yourself for the 21st century's third, fourth, fifth, sixth decade, where the four skills which are called 21st century skills, communication, collaboration, creativity, and critical thinking, these are going to make a great difference to your life. So correct your career communication and be happy and stay blessed, but keep learning. लीजिए, डन। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं इसको अभी, और इस बार हम बैकग्राउंड म्यूजिक जो लगाएंगे वो हम काम को बंद करते हैं, चीयरफुल में ढूंढते हैं, ग्लास बीड्स, मुझे ये अच्छा लगता है और ये फ्री है म्यूजिक। ये ग्लास बीड्स लग गया, ये पोस्ट हो गया आपके लिए। देखिए इसको क्या नाम दें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग मैसेज टू GCW LEARNERS लर्नर्स, एड रिकॉर्डिंग टू एपिसोड। फटाफट करेंगे इसको अभी, पब्लिश, जल्दी अपलोड, नाउ पब्लिश, यस पब्लिश,
दिस इज कॉल्ड लाइव। वो फाइल का नाम था जो मैंने दिया, लॉन्ग लर्निंग मैसेज टू GCW parade GROUND ground learners। डन। हैप्पी लर्निंग, ये बस इतना सही डाला मैंने इसमें, सीजन 1। एंड देन आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग नाउ, 46। डन एंड पब्लिश हो गया। वाओ, दिस सेलिब्रेशन बिलोंग्स टू यू। क्लिक ऑन शेयर एपिसोड, कॉपी द लिंक, कम हियर। मेरा पोस्ट किया हुआ आपको वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसको यूनिस्किल्स इंडिया से पोस्ट कर रहा हूँ। एंड आई डू दिस नाउ। डन। ये हमारा आज का काम अभी थोड़ा सा रुकता है, मतलब हम लोग काफ़ी उस तक पहुंच गए हैं। सो आई हैव जस्ट शेयर्ड दिस लिंक एंड दिस लिंक इज देयर इन द चैट। आप अगर यू आर ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल, मतलब आप क्योंकि ऑलरेडी उस पे हैं anchor.fm टीचर पर्व पे, तो आप इसको जाके वहाँ पे नया एपिसोड में इसको सुन भी सकते हैं और मुझे भी सुना सकते हैं। तो ये आपके सुपुर्द है। सो हियर इट इज नाउ। आई गेस आपने मोबाइल फोन पे भी देख लिया है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, एंड सम मोर थिंग्स आर देयर सो दैट यू कैन डू। देखिए एपिसोड्स में आ गया, क्या आ गया जी। एनीथिंग यू डू ऑन द मोबाइल फोन गोज टू द ब्राउजर वर्जन, आपस में सिंक होता रहता है, सो दैट इज देयर। सो इट्स अप टू यू, यू कैन सी दिस एपिसोड। और क्योंकि एरर नहीं किया ना कोई, तो इसलिए मुझे लगा कि उसको सीधा प्ले भी कर देते हैं। हाँ जी, ये देखिए, इसको मैं बंद करता हूं अभी। डन। लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड शो यू दिस थिंग कि हम लोग, मतलब मैं और आप, हम लोग पहुंच गए हैं स्पॉटिफाई पे भी। ये स्पॉटिफाई है जी, ये कांच के गिलास है सर। विद इन 10-15 मिनट्स वो दूसरा वाला एपिसोड भी आ जाएगा। सो दिस इज स्पॉटिफाई। आई कैन क्लिक हियर, चाहे तो मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। आई कैन कॉपी द लिंक एंड आई कैन कम एंड आई कैन से SPOTIFY। ये लो स्पॉटिफाई वालों, ये लीजिए। एंड इफ यू वांट मी टू गो टू गाना, मैं आपको एक गाना का भी एक लिंक पोस्ट कर देता हूँ। एंड दैट डजंट मीन, अब आप ये सोचिएगा जहाँ टीचर जा सकते हैं वहाँ स्टूडेंट्स जा सकते हैं, तो बस सीधी सी बात है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं सोचने का। और गूगल पॉडकास्ट भी चाहिए क्या? गूगल पॉडकास्ट ढूंढ लेते हैं जी। अभी हम लोग गूगल पॉडकास्ट के लिए अब पहुंच जाते हैं। ये गूगल पॉडकास्ट का लिंक है। नाउ दिस इज गूगल पॉडकास्ट एंड आई एम पोस्टिंग दीज थिंग्स गूगल पॉडकास्ट। ये लीजिए, आई एम नॉट पोस्टिंग दीज थिंग्स फॉर यू टू जस्ट फील कि ही डिड दिस, नहीं, इट बिलोंग्स टू यू, मतलब ये कंप्लीटली आपका है। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने अभी तक किया है। हाँ जी, अब आई वुड रिक्वेस्ट आवर वर्दी टीम हु आर मैनेजिंग दिस सेशन, दिस स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो भी अगर कुछ सवाल अगर यूट्यूब से अब आ सकते हैं तो आप मुझसे सवाल पूछिएगा। मैं कुछ चीज़ें पहले से ही अगर आपको बता दूं, मैं चाहूँगा कि वो बातें, मैं भी कोशिश करूँगा कि सवालों को देखूँ, आप लोगों के सवालों का जवाब दूँ। एंड दैट इज़ अ थिंग। हाउएवर, एक खास बात जो मुझे शुरू में कहनी थी, बट फॉर्चुनेटली आप लोगों में से ना किसी का मेरी हिम्मत रही, मुझे शाबाश दीजिएगा, कि मैंने आप लोगों को ना अभी तक ज़्यादातर लोगों को ये पूछने का मौका नहीं दिया अटेंडेंस कब लगेगी। तो ये मत पूछिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ कि वो 2 बजे के बाद लगेगी, तो वो 2 बजे के बाद ही लगेगी। कल भी मैं ही था बताने वाला, तो अटेंडेंस मत पूछिएगा। कई बार सिर्फ सीखने के लिए और कोलैबोरेशन करने के लिए और क्रिएटिविटी के लिए भी साथ होना ज़रूरी है। अटेंडेंस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो ये बड़ी बड़ी बातें हैं ना, अटेंडेंस, असेसमेंट, एग्जामिनेशन, दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। हम लोग ये छोटी छोटी सी बातें सीखते हैं, करते हैं। तो अब आप अपने सवाल तैयार करिएगा, उसके साथ मैं आपसे फिर, नहीं अटेंडेंस नहीं लगी है शिवानी जी, अटेंडेंस लगेगी लेकिन अभी नहीं लगेगी, 2 बजे के बाद लगेगी। और जो पूछेगा देखिए फिर उसको अच्छी बात नहीं है, फिर आप पूछिए ही मत। आपकी अटेंडेंस आपके कॉलेज के जो टीचर्स हैं, दे आर क्वाइट एक्टिव, वो ज़रूर डालते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि बताइएगा प्लीज, थ्रेट्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी पॉडकास्टिंग में। हेमा जी, यू हैव बीन आस्किंग गुड क्वेश्चंस, आई कैन सी दैट कि पॉडकास्टिंग में डेंजर नहीं है, साइबर सिक्योरिटी नहीं है। जितना खतरा आपको आपके इंस्टा पे है, आपके फेसबुक पे है,
या जितना खतरा आपको और एप्लीकेशंस में हो सकता है उतना खतरा इसमें नहीं है। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि जब यूज करना हो इंटरनेट तभी इंटरनेट चलाया करें। मैं शायद ये बात कह के इसको कह सकता हूँ। साइबर सिक्योरिटी के अपनी अपने एस्पेक्ट्स हैं, बट वी नीड टू बी विजिलेंट कि हम इंटरनेट पे क्या शेयर कर रहे हैं। वार्निंग दे रहा हूँ आप सभी को, इस में मतलब इस वहम में मत रहिएगा कि आपको ये वहम रहे कि आपके एम्प्लॉयर्स आपको आपके रिज्यूमे बेस पे नौकरी देते हैं ना, वो आपको आपके बेस पे नौकरी देते हैं। सर, आपकी ईमेल आईडीज जाती है बेटा जब, तो सब सर्च हो जाता है। सो प्लीज रिमेंबर योर डिजिटल फुटप्रिंट, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट, वो बहुत मायने रखता है। इंटरनेट पे कभी भी कुछ ऐसा मत डालिए, कभी भी, समझ रहे हैं आप, कभी भी कुछ ऐसा मत डालिए जो फ्यूचर में आपके अगेंस्ट जा सकता हो। रिकॉर्डिंग नॉइजी प्लेसेस है, थोड़ा शांत जगह ढूंढिएगा। एंड नॉइस रिडक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर है ऑडेसिटी, AUDACITY, वो फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको खरीदना नहीं पड़ता है, फुल वर्जन है, प्रोफेशनल स्टूडियोज में यूज होता है, लैपटॉप पे यूज होता है, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, यू कैन लर्न दैट। तो नॉइस रिडक्शन वहां से हो जाएगा, और कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। अदरवाइज अब बस स्टैंड पे रिकॉर्ड करेंगे और आप किसी शादी में कुछ रिकॉर्ड करेंगे या आप कहीं क्लास में कुछ रिकॉर्ड करेंगे, तो जो नेचुरल, उसको एम्बियंस बोलते हैं, एम्बियंस, वो ज़रूरी होती है आनी, तो वो आ भी जाए। you can keep on making podcasts and get them on your blog, otherwise share on your Facebook, on your social media, send it to me, send it to your teachers। ऐसे धीरे धीरे करके, जैसे आपने अपना नाम लोगों को याद करवाया, तो आपका पॉडकास्ट भी पहुंच सकता है। नाउ स्क्रीन इज नॉट देयर, दैट्स मी ओनली, मैंने अभी शायद बंद किया हुआ है स्क्रीन शेयरिंग। एंड कुछ और आपके सवाल हो। पॉडकास्टिंग में पैसा भी है दो तरह से। पहला, आप अपने शो को करने के बाद यू विल बी हैविंग अ पॉडकास्टिंग पोर्टफोलियो एंड यू कैन अप्रोच पीपल दैट यू हैव बीन मेकिंग पॉडकास्टिंग, सो दे कैन गिव यू शोज। दूसरा काम मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आप डिग्री करते हैं तो आपको टीचिंग की जॉब मिलती है क्या? अब आप अगर बीएससी कर रहे हैं तो आर यू गोइंग टू गेट द टीचिंग जॉब ऑफ बीएससी टीचिंग? नहीं ना। मतलब क्या होता है दैट यू डू थिंग, मतलब पॉडकास्ट इसलिए मत करिए कि पॉडकास्ट जो है आपके ही पॉडकास्ट को पैसे मिले। आपको अल्टीमेटली एक ऑल्टरनेटिव करियर, एक स्किल डेवलप करनी है, तो वो प्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, सबके सब पॉडकास्टिंग करके नहीं जाएंगे, तो ये बड़ा जरूरी है। मतलब जब आप ये सोचिएगा कि आपको अपने मन के जो दरवाजे हैं वो खुले रखने हैं, हाँ, उन डोर्स को बंद कर दीजिएगा जिनमें से आपको लगता हो कि थोड़ी सर्द हवा आ रही है, कोई चीज आपको रोकने आ रही है। चलते रहिए, काफिला बनता जाएगा। ये सवाल एक इनवैलिड सा सवाल लगता है मुझे जब आप ये पूछते हैं कि कितने दिनों में हम हजारों लोगों तक पहुंचेंगे। मुझे 10 साल लगे हैं, बट मैं जब पहुंचा हूं तो मुझे तसल्ली है। आप लोग भी तो इसी प्लेनेट पे रहने वाले हैं ना। अगर आपका ये प्लान हो भाई, देखो कि आपको शिफ्ट करना है कहीं और, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे रे मना, बहुत आराम से मिठास आती है और वो बहुत जल्दी भी आ सकती है। सो दैट इज अ थिंग। नाउ आई कैन रिक्वेस्ट फॉर सर्टेन क्वेश्चंस इफ समबडी कैन शेयर दीज थिंग्स। अगर आप पूछ सकते हैं तो हम इस सेशन का भी जो ब्रेक लेंगे अभी 10 मिनट्स का या कुछ, उसके तुरंत बाद में, उस दौरान आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो और आप कुछ और तैयारी कर सकते हैं। पॉडकास्ट का अकाउंट बना सकते हैं अपना, कोई पॉडकास्ट मेरे लिए बना के तैयार कर सकते हैं और मुझे वो भेज सकते हैं कि देखिए हमने अभी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है और फिर से सेशन में वापस आ गए हैं। आई कैन शेयर दैट पॉडकास्ट, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हाँ जी। नाउ डॉक्टर सतिंदर के जुनेजा जी हैं हमारे पास, या फिर डॉक्टर पलक हैं, गौरव सर हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, आप लोग भी हैं सभी। तो आपके सवाल जो हैं वो आई वुड टेक अप इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग ट्रबलिंग यू। हाँ, डाउट मत करिएगा जी। एक्सक्यूज मी प्रवीण सर, देयर इज स्मॉल क्वेरी, नॉट ए क्वेश्चन। दीज जो आपने जैसे अभी में एंकर बताया या और एप्लीकेशन बताई, दीज आर पॉडकास्ट, दीज आर फॉर क्रिएशन ऑफ पॉडकास्ट, and Spotify, Gaana, and these are basically channels for hosting them, or yes sir, they are there are two things now, creation and distribution. Like we publish the books and we distribute the books. मतलब आप खाना बनाते हो, फिर जोमेटो या स्विगी या मैं और आप उसकी डिलीवरी करने जाते हैं। स्पॉटिफाई जो है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, वी गेट टू लिसन टू पॉडकास्ट्स
which are there on Spotify. Spotify takes money from people and then they upload their podcasts there and they get royalty from it. एक दूसरा, Spotify approaches people and then asks them कि हमारे लिए शो बनाएंगे आप, तो वो उनको पैसे दे के शो बनवाता है. दो तरीके से ये काम हुआ. जो थर्ड है, जो हमारा रास्ता है, that is that through Anchor we can directly get distributed without paying any money and then we go to Spotify. Spotify जो है वो एक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, जैसे YouTube एक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन भी है, और क्रिएशन जो है वो हम लोग करते कहीं और YouTube पे अपलोड करते हैं. YouTube पे कैमरा तो नहीं है ना अपना, तो वो उस तरह से है सर. थैंक यू सो मच. थोड़ा सा ये बच्चों की क्लैरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है. हाँ, हम एंकर दोनों काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगा, क्रिएट भी कर देगा. हाँ जी सर, one more question. Is there any degree or diploma required for podcasting? आई वुड से अभी तो है ही नहीं. आप लोग, मैं आपको जब कह रहा हूँ, यू पीपल आर द फर्स्ट वंस, मतलब हम लोग तो इंडिया के लीडिंग फ्लैग बियरर्स में से हैं, मैं और आप, जब ये पॉडकास्टिंग की बात कर रहे हैं. तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें हम लोगों को. हम लोग बिना डिप्लोमा डिग्री के भी कर सकते हैं. बट इफ यू आर गोइंग टू डू सम मास कम्युनिकेशन एंड समथिंग, देन प्रोबेबली दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तब ये शायद आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है कि, लेकिन इसकी डिग्री नहीं है कोई भी, इसकी बिल्कुल भी कोई डिग्री नहीं है. तो ये बात है जी. हाँ, एक ऑनलाइन कोर्स है पॉडकास्ट इन एजुकेशन, जो प्राइमरीली फॉर टीचर्स है या फिर उन लोगों के लिए है जो पॉडकास्टिंग सीखना चाहते हैं. वो अभी अभी हमने लॉन्च किया था, हालांकि उसका 1 हफ्ता हो चुका है. एंड वी स्टार्टेड इट ऑन 21st. तो वो चल रहा है. उसका सेकंड बैच जब होगा तो आप कहेंगे तो हम बच्चों के लिए उस कोर्स को, जिसमें अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है जो उस कोर्स को रन कर रहे हैं, वो 500 रुपये फीस का कोर्स है. वो आपको सिर्फ एंकर नहीं, हब हॉपर पे, गूगल पे और प्लेटफॉर्म्स पे, उन सब पे पॉडकास्ट बनाना सिखाता है. तो वो कोर्स भी आप कर सकते हैं. अगर मैं, मतलब आई एम नॉट श्योर वेदर द एनरोलमेंट माइट बी पॉसिबल नाउ, बट स्टिल विल शेयर द लिंक. एंड इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, मैं एक ईमेल आईडी आप लोगों के लिए टाइप कर रहा हूं सभी के लिए, e-learning@aud.ac.in. आप चाहें तो इस पे ईमेल करके अपना इंटरेस्ट, दैट यू आर विलिंग टू पे द फी एंड देन यू वांट टू डू द कोर्स, तो आप शायद पूछ सकते हैं अगर किसी को वो करना है तो, सो दैट यू गेट अ सर्टिफिकेट ऑल्सो. Crafting these two valuable interlinked workshops, blogging in this. Yes, thank you. If we have not any channel, then how I can share it? When I can share it? Podcast का वीडियो, देवेंद्र जी, what you can do is, अभी जैसे मैं आप लोगों से अगर शेयर करूं एक, मतलब YouTube से ही कुछ, I have got a channel which is using the audio made on Anchor, एंड उसके पीछे ऑडियो लग गया, और आगे मैंने उसके साथ क्या किया है कि मैंने उस पे इमेजेस डाल दी हैं या स्टॉक शॉट वीडियोस हैं वो डाल दिए हैं. मैं आप लोगों के साथ अभी एक छोटा सा एक चैनल शेयर करता हूं. अभी मैं स्क्रीन शेयर करके, सो दैट आई कैन, अभी अटल जी की पोएम्स जो हैं वो हम सुन भी रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन पोएम्स जैसा ही कुछ है. आई जस्ट ट्राई टू हैव द वीडियो थिंग, शेयर द वीडियो एंड विल ब्रिंग इट टू यू. ये गूगल क्रोम, और यहाँ पहुंच जाते हैं. मैं जैसे ही गूगल बोलता हूँ, मेरे मोबाइल फोन का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो ऑन हो जाता है. सो दिस इज चैनल. व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, ये देखिए, आई एम यूजिंग द ऑडियो एंड आई एम गेटिंग द पॉडकास्ट हियर ऑल्सो. स्पीकर एंड माइक्रोफोन, ओके, बोथ आर वर्किंग. सो दिस इज, ये लीजिए, जैसे ये एक लिंक है, मैं ये लिंक आपसे शेयर कर लेता हूँ. यहाँ पॉडकास्ट यूज हो जाते हैं हमारे. पर्व पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है. दिस इज ऑल्सो कमिंग टू यू. दीज आर एग्जाम्पल्स दैट यू कैन डू दिस थिंग. आप चाहें तो सिर्फ उस पर भी रह सकते हैं, मतलब चाहें तो सिर्फ ऑडियो रखिएगा, चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. ये लीजिए. और when your channel will go to Spotify, do we have to pay separate charges? No, Suvansha, we don't need to pay anything. आपके पास मोबाइल फोन है, आप कोई सिंपल सा, जो अगर आप माइक्रोफोन खरीदना भी चाहते हैं तो कोई 700-800 रुपए का बोया का कोई कॉलर माइक आता है, वो खरीद सकते हैं. तो वो चीजें आप कर सकते हो. ठीक है जी. तो ऐसा कुछ हो जाता है. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है अगर आप लोगों का? इफ आई लुक एट द चैट एंड देन ट्राई टू फाइंड इट आउट. Basic apps.
कल मैंने 2 लिंक्स आपके लिए पोस्ट किए थे। एक अटर ऐप है, UTTER, दैट इज कॉल्ड अ चैट बॉट, इंग्लिश के लिए बड़ा मजेदार है अटर, पेड एंड फ्री बोथ। देयर इज अ लिंगुआ, आई गेस कुछ ड्यूओलिंगो, यस ड्यूओलिंगो है, उसमें लैंग्वेजेस सीखने की एप्स हैं। देयर इज ग्रामरली दैट अतुल शेयर्ड विद यू, बहुत जरूरी है ग्रामरली आपका यूज करना, जरूर यूज करिए। एंड ऑल्सो लाइक somebody is talking about the podcast course also, तो आप उस कोर्स के लिए मैंने ईमेल आईडी शेयर कर दी है आपसे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एंड व्हाट एल्स, लाइक इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, or I'll request my fellow teachers also to pick the questions and let me know अगर कुछ है तो। नहीं तो हम ये 10 मिनट के बाद में फिर थोड़ा सा एक छोटा सा सेशन और करेंगे, जो आप लोगों को रिज्यूमे बनाना, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना सिखाएगा, और कुछ और अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है दैट यू वांट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स आल्सो, तो मैं वो बातें भी आपसे कर सकता हूँ जी। think so you have addressed most of the queries. जी जी, We shall take a break of 10 minutes, sir. डन मैम, वी कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। मैं तब तक We shall be अपने joining, sir, at 1, around 1. around 1, yes, at 1 we can join, and till then what I'll do is I'll play something for them, and I also wish to invite them to the source from where I'll be playing these things. Join me here, that is this is the YouTube channel from where I'll be sharing the contents with you, so you can join it, you can that way follow or subscribe this one, so I also contribute to this channel. What is the ideal length? This is Shikha Baru, this is such a nice question. There was a national Spotify organization thing, like Spotify organized a podcasting day, international podcasting day. In that we got popular podcasters, जो इंडिया के बड़े लीडिंग पॉडकास्टर्स हैं, वो आए, उन्होंने कहा 8 से 10 मिनट, मतलब जब तक आपको लगता है कि आपके लिसनर्स उसको सुन सकते हैं, तो पॉडकास्ट की कोई लेंथ नहीं होती है। 40 मिनट्स 30 मिनट्स तक भी बहुत आराम से पॉडकास्ट सुने जाते हैं, बिकॉज पॉडकास्ट वीडियो नहीं है ना। सो दीज आर लिसन्ड व्हेन यू आर ड्राइविंग, यू आर सिटिंग आइडल, मतलब आप आराम से बैठे हैं, वो प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में, तो ऐसा कुछ हो सकता है। कंटेंट्स, जिस चीज में आपको लगता है कि यू आर एक्सपर्ट, यू कैन टॉक अबाउट इट, लिटरेचर, जिस चीज में ब्लॉगिंग हो सकती है उसमें पॉडकास्टिंग भी हो सकती है। ये ऑडियो ब्लॉगिंग है, मतलब मैं अगर आपको ये कहूँ, दैट इज टेक्स्ट ब्लॉगिंग और मीडिया ब्लॉगिंग, दिस इज ऑडियो ब्लॉगिंग। तो जो वहाँ एप्लीकेबल है वो यहाँ भी है। यू कैन मेक 30-40 मिनट्स इंटरव्यूज, 1 hour ऑडियो ड्रामाज, उसमें कोई देयर इज नो टाइम लिमिट। 8-10 मिनट तो मुझे लगता है कि एक आइडियल लेंथ है ही मेरी तरफ से, अदरवाइज 40 मिनट इज सेट टू बी अ गुड एपिसोड लेंथ इफ यू आर मेकिंग अ शो, कोई आप पूरा शो कर रहे हैं तो। और सवाल अगर मुझे कुछ है तो हाँ जी। So how to keep the listener actively engaged? Haven't I been able to engage at least 50% of you? Means बोलना है और पढ़ना है। आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आगे बोलेंगे जाके। मैं इसमें अगर ब्रेक में जाने से पहले मैं सब लोगों को अगर एक बात बताना चाहूँ कि एंगेज क्या करना है। फंडामेंटल कैपेसिटी है, आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स की, एंगेज कर लेना, और मतलब ध्यान जो है लोगों को अपने उस पर रखना, अपनी बातों पे। एक मैं अब आपको एक छोटी सी बात बता के और ब्रेक पे भेजता हूँ। एक लीडर एक वाटर टैंक का इनॉग्रेशन करने जाते हैं, बड़ी मजाक की, बड़ी खुशी सी की बात है, और उनको वहाँ स्पीच देनी होती है, और उनकी स्पीच रेडी नहीं होती है क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था, उन्होंने सुना नहीं था, तो वो क्या करते, तो उन्होंने जाके शुरू किया अपना भाषण। भाइयों और बहनों, ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक में पानी भरा जाता है। पानी 2 तरह का होता है, अच्छा पानी, गंदा पानी। गंदे पानी में कमल का फूल खिलता है, कमल का फूल सुंदर होता है, सुंदर तो वैसे गुलाब का फूल भी होता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है, पेट तो वैसे खरबूजा भी साफ करता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, रंग जर्मनी के बढ़िया होते हैं। जर्मनी के हिटलर ने कई वॉर लड़े, वॉर 8 तरह के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, एंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड का मतलब दुनिया, दुनिया गोल है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है, रसगुल्ले को खाने से प्यास लगती है और प्यास पानी बुझाता है, तो उसी पानी के लिए ये वाटर टैंक बनाया गया है। सो बातें
लाइक यू नीड टू कॉइन, यू नीड टू ब्रिंग, यू नीड टू हैव आइडियाज, ऐसा कुछ करके फटाफट बोलते जाइए, काम की बातें बोलिए, लोगों को क्वालिटी दीजिए, वैल्यू दीजिए कुछ कंटेंट की, तो ऐसा कुछ हो सकता है जी। हाँ जी।